Hello, welcome to all the Academy. Let's crack all eight civics exam with us. We have top educators, quality contents, and you may feel great learning experience over there. So let's crack CBSE 8th. This is about me. My name is Mohit Pandey, and I have done MTech in Computer Science Engineering, BTech in IT, and PhD CSCSI is ongoing, and GATE qualified in CS, and UGC NET qualified in Computer Science. And I have more than 7 years of teaching experience, and also author of various research articles and book chapters. So let's begin. You need to subscribe for cracking CBC Class 8 with India's largest learning platform. So you need to get subscribed first, right? And the benefits of the subscriptions are there are daily live classes. In that you can chat with your educator, engage in discussion, and you also take live tests and quizzes. And there is unlimited access of live and recorded session from anywhere, anytime, and from any of your device. And the Unacademy courses are structured in a way like patterns, CBC pattern depends on the CBC patterns, right? And you are also getting the free live classes. Unacademy educators are the top educators having more than 20 years of the teaching experience, highly qualified. They are NET and GATE qualified, and many awards winners, and they have both modalities experience. That's mean online and offline. That's mean Unacademy educators are the top, right? So the syllabus of your class 8 is managed in the comprehensive manner, right? Like mathematics, science, English, Hindi, and social science, and computers, which is based on the CBSE pattern, and we follow always NCERT book. Agar NCERT book available nahi hai beta, then we follow the syllabus is guided by the CBSE and the various schools, right? Now there is an Academy Learning app you need to download from the Google Play Store and install it for the better learning experience. And for Talk to Us, you need to just join the Telegram app, download it from the Play Store, and type the link in the URL and tap on the join button, right? And there is about something about the pricing. Pricing का मतलब बच्चे fee, you know this. And there are 4 plans. This may say 1 month plan I not recommend. I recommend 12 month at least, or 24 month plan, because this is a class 6 to 12 subscription. एक क्लास है बच्चे 1 year तो लगेगा. So 1 month में आप क्या करने वाले हैं? कुछ भी नहीं हासिल होगा, right? You cannot achieve anything in a 1 month. You need at least for the 12 months or 24 months. बेटा प्राइस के मुकाबले भी देखें. This is a 50% half as compared to the 1 month, and this is 1042 rupees, means 58% off, right? मतलब एक साल का आपको 15,000 रुपये देना है, और 2 साल का अगर लेते हैं तो 25,000 देना है, मतलब फिर 5,000 और कम हो जाएगा. एंड इफ यू यूज दिस कोड लाइव एम पी, दिस इज रिटन ओवर देयर इन लास्ट, लाइव एम पी, LIVEMP, then you get extra 10% discount, right? Means 15,000 वाला बच्चे आपको पढ़ने वाला है 13,500 का, 25,000 वाला बच्चे पढ़ने वाला है आपको 22,500 का. So go with the 12 month or 24 subscription, because this live MP code is applicable for 10% for one time actually, right? This is applicable for one time, right? So go for this. अगर इसमें गए 1 month के लिए तो सिर्फ आपको 250 रुपीज डिस्काउंट मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, right? So now come to the our points. So today's lecture's point is बच्चे learn coding in C++. Wow, coding in C++. So there is a programming language which is known as C++. इसमें कोड करते हैं मतलब प्रोग्राम लिखते हैं या फिर प्रोग्रामिंग करते हैं. ये हम करना सीखेंगे अभी से, राइट? अभी से हम C++ पे कोड करना सीखेंगे, राइट? सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट इन दिस सीरीज, कोडिंग इन C++ is a series. In that series, the first topic is what? This is your first topic. In this topic you are not learned anything about programming, but firstly I just want to tell you about why programming. Then after in upcoming lectures हम C++ की कोडिंग करेंगे और बच्चों बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे,
बहुत मजा आने वाला है, नो डाउट। बट उससे पहले बच्चे मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि वाई वी यूज प्रोग्रामिंग, मीन्स व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग। दैट्स मीन आप कह सकते हैं नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बताने जा रहा हूं बच्चे आज के लेक्चर में। सी प्लस प्लस की कोडिंग नहीं करेंगे, बट दिस इज अ सीरीज ऑफ कोडिंग इन सी प्लस प्लस। मीन्स इस लेक्चर के बाद, फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स, वी आर डेफिनेटली डू कोड। हम प्रोग्राम लिखेंगे भी और बच्चे उसको रन भी करेंगे और आउटपुट आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ताकि आप जब भी प्रोग्रामिंग करें आप अच्छे से उसका कोड देख के लिख सकें और खुद भी लर्न करके उसको रन करा सकें, राइट। सो टुडेज टॉपिक इज ओनली यूज ऑफ प्रोग्रामिंग। बेसिक फंडामेंटल समझेंगे बच्चे, कंप्यूटर क्या है, डिवाइसेस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, रैम क्या है, मेमोरी क्या है, राइट। प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है, प्रोग्रामिंग जनरेशंस क्या है, राइट। और हम ये कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, एल्गोरिथम क्या है, इन सब बारे में हम आज सीखने वाले हैं। ये बच्चे आपको बहुत एडवांस तक ले जाने वाला टॉपिक है, right? So let's begin with the series coding in C++. The first topic is use of programming. Now I navigate to the first slide. Okay, this is what? This is computer, right? Okay, heading is actually missing from here. Okay, computer. This is what? Computer. This is the definition of computer. So I want to know from your side what is the computer. Computer is an electronic device that's good, that can store पहली चीज। सेकेंड, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, राइट। ये हमारा स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन को, हमारे लिए इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सॉल्व कर सकता है, राइट। एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, उसको अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट अरेंज कर सकता है, राइट। अ कंप्यूटर इज एबल, किसके लिए? टू परफॉर्म वेरियस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अच्छा, कंप्यूटर किसके लिए एबल है? कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या परफॉर्म कर सकता है? वेरियस, बहुत सारे अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है बच्चे। अर्थमेटिक का मतलब आप जानते हैं, आपने यूज किया है, लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन, राइट, सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके के जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो कर सकता है। लॉजिकल भी ऑपरेशन कर सकता है बच्चे, लाइक एंड, और, नॉट एंड मैनी मोड्स, राइट। सो इस तरीके के जितने भी ऑपरेशन है हमारा कंप्यूटर कर सकता है। और कंप्यूटर बेसिकली क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट, सिंपल। नाउ there is the functionalities of the computer. why uh, why this is looks like this? I need to see what happened with this ppt, why it looks like this. Okay, the design layout is actually, I don't know what's happening with this. Just a moment बच्चे, just a moment, just a moment. Something is wrong with these slides, I don't know what happened. Just a moment. Okay, so this is computer. Now what's the next? Next is, again it will be happen, I don't know what's the problem with this.
Now it's okay. Okay, so this is about the computer. There is some problem in this. I don't know what's the problem behind this. Now, next is what? What is the functionalities of the computer? नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर की कुछ फंक्शनैलिटीज हैं बच्चे. वो क्या है? टेक्स डेटा एज इनपुट, सिंपल, एंड स्टोर द डेटा, पहला डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन, इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड. बच्चे आप समझिए कि कंप्यूटर क्या कर रहा है? इनपुट लेता है. आप इस नीचे डायग्राम में देखिए, ये सीपीयू है, इसको मानते हैं कि कंप्यूटर है. इस एक्चुअली ये पूरा ही कंप्यूटर है, राइट. इस कंप्यूटर में क्या हो रहा है? इनपुट जा रहा है. इनपुट सीपीयू क्या करता है? मेमोरी में रखता है. जो भी डेटा है वो मेमोरी में रखता है. जरूरत पड़ने पे मेमोरी से ले भी लेता है. यहां पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, राइट, और हमको आउटपुट मिलता है, राइट. सो दिस स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. दोनों चीजों का मतलब बच्चे क्या है? डेटा जो हमें रिक्वायर्ड होता है, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो गिवन वैल्यूज होती हैं वो डेटा है. इंस्ट्रक्शन जो मेथड आप सॉल्व करने का जानते हैं, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस. तो आपको कभी ना कभी इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करे गए होंगे ना आपके माइंड में. इन द सेम मैनर हमें कंप्यूटर की मेमोरी में ये दोनों चीजें स्टोर करानी होती हैं, राइट. सो यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज कर सकते हैं. और क्या करता है बच्चे? प्रोसेस द डेटा and converts them into useful information. डेटा को प्रोसेस करता है और क्या करता है? कन्वर्ट करता है them into useful information, राइट. जो डेटा आपका मेमोरी में स्टोर है उसको प्रोसेस करेगा, मींस उस पर कुछ काम करेगा, मेथड अप्लाई करेगा और कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेगा. और वो यूजफुल इंफॉर्मेशन इज जनरेट्स व्हाट? जनरेट्स द आउटपुट. यहां इसके पीछे छुप गया है वो, जनरेट्स द आउटपुट, राइट. सो आउटपुट मिलने वाला है हमको. सो दिस इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एनी कंप्यूटर. और बच्चों आप बेसिक बात समझिएगा, जितना भी हमारा कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे हम लोग हों, मीन्स हमारा जो दिमाग हो, उसमें भी बच्चे क्या होता है? कुछ ऐसा ही होता है, राइट. आप देखिएगा यहाँ पे कैसे, सपोज ये एक आदमी है, मैं एक एक बच्चे का इमेज बना रहा हूँ, राइट. राइट, ये एक बच्चा है, राइट. इसके पास दो कान हैं एंड दो आंखें हैं, ऑफ कोर्स, राइट. और एक बड़ा सा दिमाग, राइट. थोड़ा और दिमाग बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, राइट. अभी बच्चों ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक बच्चा है. इसको बोला जाता है प्लीज ऐड टू नंबर्स. इसको बोला गया, ये आवाज कहां गई? इसके कान में, ठीक है. दिस इज व्हाट? दिस इज द इंस्ट्रक्शन टू दिस गाय कि आपको करना क्या है. ये कहां जाएगा? इस पूरे स्टेटमेंट को इक्वल टू मैं कह देता हूं दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऐड. मैं इस पूरी लाइन को ऐड समझ लेता हूं, राइट. इसको मैं जहां पे ऐड लिखा होगा दैट्स मीन ये पूरी टोटल लाइन है. तो इसके माइंड में ये बात आ गई कि कुछ ऐड करना है, राइट. फिर उसके दिमाग में दिस गाय इज वेटिंग फॉर, ऐड तो करना है लेकिन क्या ऐड करना है, राइट. अब क्या होगा? आपने बोला फर्स्ट नंबर इज 2, तो इसके दिमाग में 2 गया, यहां पे 2 स्टोर हुआ दिमाग में, राइट. थर्ड नंबर इज 3 स्टोर हुआ दिमाग में. और क्या करना था? ऐड. इसको ऐड कर दिया, राइट. ऐड करके इसने क्या किया?
आंसर दिमाग में ही रखा है अभी, वो दिमाग में रखने से क्या हो गया, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट हो गई। ये क्या हो गई बच्चे 5 हो गई। और 5 कहां से इसने अपने माउथ से इसने बोला क्या, जैसे वो होता है ना कॉमिक्स में, क्या बोला, आंसर इज 5, राइट। अब बच्चे इस प्रोसेस को समझिए, ये जो व्यक्ति का जो दिमाग है, द माइंड और ब्रेन, इन दिस ब्रेन व्हाट इज हैपनिंग, इन दिस ब्रेन व्हाट इज हैपनिंग, पहली बात एक इंस्ट्रक्शन जाता है, प्लीज ऐड टू नंबर्स, दैट इंस्ट्रक्शन मीन्स ऐड, फर्स्ट इनपुट। ये क्या हुआ बच्चे, फर्स्ट इनपुट। इनपुट क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन इनपुट हुआ, ये एक इनपुट हुआ। और इनपुट कहां से हुआ, ईयर से हुआ। ये क्या है, इसके कान है ना, ईयर, इस ईयर से इनपुट हुआ, राइट। फिर इनपुट वैल्यू क्या गई आपकी, 3 इनपुट। फिर क्या वैल्यू हुई, 2 इनपुट। 3 एंड 2 इज इनपुटिंग बाय द ईयर, राइट, लाइक अ कंप्यूटर। ये आपका ईयर जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, सिंपल, राइट। ओके, फिर उसके बाद में ये दिमाग में गया, जब इसने पहला इनपुट मिला 2, पहले इनपुट मिला इंस्ट्रक्शन ऐड, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ रखा, इसने अपने माइंड में रखा, कहीं बाहर तो नहीं जाने दिया ना, माइंड में रखा, ठीक है। फिर इनपुट आया 2, जब इनपुट 2 आ रहा था तो क्या ये भूल गया था कि ऐड करना है, नो, इसने कहीं और लोकेशन पे अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया कि मुझे कुछ ऐड करना है, वो मैंने याद रखा हुआ है, राइट। फिर एक वैल्यू आई 2, फिर इसको भी हमने प्लेस कर दिया। नाउ आई एम वेटिंग फॉर अनदर नंबर, राइट। जब अनदर नंबर हम रिसीव कर रहे थे तो क्या इस इंस्ट्रक्शन ऐड को और 2 को भूल गए थे, नहीं, मेमोरी के किसी हिस्से में मैंने ऐड को भी रखा था और 2 को भी रखा था, वाइल आई एम रिसीविंग वैल्यू 3। फिर हमने 3 को भी रिसीव कर लिया। जब 3 को रिसीव कर लिया बच्चे, फिर मैंने वो जो पहले नंबर आई थी जो कि 2 थी, उसको रिकॉल किया, याद किया। फिर ये याद किया कि इन 2 नंबर्स के साथ अब करना क्या था, ये याद आया कि ऐड करना था। फिर हमने उसको ऐड किया, और ऐड करना आपके कंप्यूटर के एएलयू को, हार्डवेयर जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, करना जानती है, राइट। सो दैट्स वाई 2 एंड थ्रू ऐड होके आंसर मिला बच्चे 5। 5 अभी कहीं गया नहीं है, मेमोरी में ही है। जब 5 मेमोरी में है तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जाता है, नाउ फ्रॉम हिज माउथ ही स्पीक आंसर इज 5। तो जो आउटपुट मिल रहा है बच्चे, आउटपुट मिल रहा है इस माउथ से, और माउथ को कहां से मिला है वैल्यू, इंफॉर्मेशन कहां से मिली, माइंड से, ब्रेन से। तो ये जो माउथ है दैट इज नथिंग बट अ आउटपुट डिवाइस, राइट, नथिंग बट अ आउटपुट डिवाइस, just like output device of a computer, and this is input, and this is what, this is your CPU, this is your CPU plus memory, this is your CPU plus memory, जो कि कंप्यूटर में होता है ना सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू भी है और मेमोरी भी है जो आपका ब्रेन है। इन द सेम मैनर कंप्यूटर विल वर्क्स, बिकॉज कंप्यूटर को हमने नहीं बनाया, सॉरी, कंप्यूटर ने हमको नहीं बनाया, हमने कंप्यूटर को बनाया। सो कंप्यूटर इज इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमंस एक्चुअली, राइट। सो इन द सेम पैटर्न बच्चों, हम वापस आते हैं, जो फंक्शनलिटीज हैं कंप्यूटर की, लाइक यहाँ पे देखिए कि इनपुट है, इनपुट से आउटपुट मिलता है, कब मिलता है, ये आपका इंसानी दिमाग सीपीयू जिसके अंदर मेमोरी भी है, वहां कुछ कैलकुलेशन होती है और हमको आउटपुट मिलता है, राइट। सो दीज आर द फंक्शनलिटीज ऑफ द कंप्यूटर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं। अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं कि इसके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं। बच्चे कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट है, 1 है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, राइट। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, राइट, डेटा होता है, और अपना
यूजर होता है। यूजर के बिना ये ना हार्डवेयर की जरूरत, ना सॉफ्टवेयर की, ना डेटा की, बिकॉज यूजर ही तो है जो कंप्यूटर की फैसिलिटी लेने वाला है। और हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज अ एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर है जिसपे एक्चुअल वर्क, एक्चुअल कैलकुलेशन होता है, राइट? जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो जो हमारी बॉडी है, द टोटल बॉडी स्ट्रक्चर, एवरी एंड ईच थिंग इज अवर हार्डवेयर, राइट? एंड द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन इज अ सॉफ्टवेयर। क्योंकि बच्चों सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग होता है, राइट? हार्डवेयर तो काफी मिलता जुलता होता है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर मीन्स हाउ यू बिहेव, दैट्स डिपेंड्स ऑन योर मेंटल स्टेटस, राइट? And what you learn from the word, this is the data, right? That's mean कंप्यूटर के अंदर जो वैल्यूज इनपुट कराई गई हैं या उसने जनरेट करी हैं वो डेटा है, राइट? एंड उस कंप्यूटर को यूज करने वाले लोग यूजर होते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। व्हाट इज द हार्डवेयर? एंड हार्डवेयर इज व्हाट? अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच वी कैन सी एंड टच। हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम बॉडी, किसी कोई ह्यूमन है उसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, राइट? एंड सेम वाइज अ कंप्यूटर हार्डवेयर, हम उसको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स और द कंपोनेंट्स। सारे कंपोनेंट्स को मिलके आपका एक कंप्यूटर बनता है। और वो कंप्यूटर क्या है बच्चे? मॉनिटर लाइक output device, mouse and keyboard like input device, these all are combining to become a hardware of your computer, right? हर एक पार्ट एक हार्डवेयर की ही तरह काम करता है। एंड दी कंप्यूटर हार्डवेयर की कुछ इमेजेस यहाँ बच्चे बनी हुई हैं। दीज आर दी मॉनिटर्स एंड दीज आर दी लैपटॉप चार्जर, कीबोर्ड्स, राइट? दिस इज दी बैटरी, माउस, मॉडेम, these are the rams, this is your what is this, switch, and these are the pen drives, right? These all are the computer hardwares. Along with this मैं आपको और बताता हूँ मदरबोर्ड, जिस पे सारी चीजें लगी होती हैं। कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, वहीं सारी चिप्स, मेमोरी, सब कुछ उसी पे लगा होता है, राइट? हार्ड डिस्क, राइट? सीपीयू, या फिर हम सीपीयू की जगह कह देंगे प्रोसेसर। सीपीयू के अंदर एक पार्ट होता है बच्चे जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट? ग्राफिक्स कार्ड, इस तरीके से बहुत सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स, आईसीज उसमें लगी होती हैं जो एक्चुअल में आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, राइट? And the software is what? Software is a large program or set of programs, right? Or a collection of प्रोग्राम, कुछ भी आप कह सकते हैं। सारी बातें बच्चे मीनिंग सेम है। दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट वर्क टू डू, राइट? व्हाट वर्क टू डू, राइट? एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बोलता है। कंप्यूटर को बोलने का मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर को बोलता है कि भैया ये काम करना है, यू यू हैव टू डू दिस वर्क, बिकॉज एक्चुअल में हार्डवेयर ही करने वाला है, राइट? सॉफ्टवेयर तो एक ऐसी चीज है, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं। हार्डवेयर को जैसे बोला वी कैन सी एंड टच, बट सॉफ्टवेयर को वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट टच। एक बार देख तो सकते हैं स्क्रीन पे बट टच नहीं कर सकते, राइट? बट एक्चुअली सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है, कैसा चल रहा है, वो भी हम नहीं देखते, उसका रिजल्टेंट ही देखते हैं। सो वी कैन नॉट टच दोज थिंग्स, वी कैन नॉट टच इन द कंप्यूटर सिस्टम, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, राइट? लाइक इन ह्यूमंस का बिहेवियर मीन्स उनके दिमाग, उनके मेंटल स्टेटस को यू कैन नॉट टच, राइट? यू कैन नॉट टच। लेकिन इफ मेंटल स्टेटस इज नॉट गेट, देन इट इज नॉट पॉसिबल कि वो ह्यूमन अच्छा काम करे, राइट? सो सॉफ्टवेयर्स जो हैं आपके बच्चे दो तरीके के बनते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बच्चे वो होता है जो सिस्टम के लिए डेडिकेटेड है, मींस दिस सॉफ्टवेयर आर वर्क्स फॉर दिस सिस्टम, नॉट फॉर यू, राइट? इनडायरेक्टली आपके लिए काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तो हार्डवेयर भी आपके लिए काम कर रहा है, बट एक्चुअल इंटरेक्शन यू कैन नॉट interact with your hardware, and even you cannot directly interact with the system softwares, right? Sometimes you can interact, but
इन अ ब्रॉड मैनर आई वांट टू से यू कि सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम के लिए है, मीन सिस्टम को चलाने के लिए है। और दूसरे टाइप के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम यूजर इसको यूज करता है, लाइक MS वर्ड, पेंट, LC मीडिया प्लेयर्स, गेम्स, दिस टाइप ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स वी कैन यूज, राइट। एंड दी व्हाट आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा वो होंगे जिनको, वो सॉफ्टवेयर जो इन सॉफ्टवेयर्स को रन कराते होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को जो रन कराएगा सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे रन कराएगा बच्चे? हार्डवेयर से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सब काम करेगा हार्डवेयर, हार्डवेयर से कौन करवाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर से कौन करवाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एप्लीकेशन को कौन यूज करेगा? यूजर, राइट। तो आप इसको इस तरीके से भी बच्चे देख सकते हैं कि यूजर को कोई काम करवाना है, एनी वर्क और वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो वो डायरेक्ट इंटरैक्ट करेगा किससे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे इंटरैक्ट करेगा बच्चे? सिस्टम सॉफ्टवेयर से, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर फाइनली किससे काम करवा देगा? हार्डवेयर से, राइट। आपको बात समझ में आई? तो एक्चुअल में काम करने वाला कौन है? हार्डवेयर है। करवाने वाला कौन है? एक्चुअल में यूजर है। मींस एट बोथ एंड, एक लास्ट में एंड है दैट इज हार्डवेयर, एंड एट दिस एंड देयर इज यूजर। सो यूजर का काम हार्डवेयर करता है, लेकिन हार्डवेयर से काम करवाना बच्चे हार्ड होता है, दैट इज वेरी टफ। वाई? बिकॉज उसकी लैंग्वेज हम नहीं समझ पाते, यूजर नहीं समझ पाता। तो एक हियरार्की बनी हुई है, पहले आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अपनी बात बोलेंगे कि जिसके लिए वो बना होगा, वो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर रन होगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कैपेबल टू मेक your work easy with the help of hardware, right? Now next is what type of the software are written over there. The software is basically classified into two categories, मैंने भी आपको बताया, system software and application software. The system software is designed to manage the system resources. किसके लिए डिजाइन किए गए हैं? सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। और क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने का प्लेटफॉर्म भी देता है, और बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी मैनेज करेगा, ऑफकोर्स करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन फॉर द यूजर्स टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क मतलब चाहे वो पेंट हो, चाहे वर्ड हो, चाहे कोई गेम हो, या फिर कोई और अदर सॉफ्टवेयर हो जो आपने यूज किए हो। फिर बच्चे उस सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में क्या होता है? एक और कंपोनेंट होता है आपका डेटा। डेटा क्या होता है भैया? डेटा तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। डेटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स ऑन विच कंप्यूटर परफॉर्म्स प्रोसेसिंग टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। बेसिक बात क्या है बच्चे? कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं, मतलब कि देने का मतलब इनपुट करते हैं, इनपुट डेटा करते हैं, और बदले में ये कंप्यूटर, अगर ये कंप्यूटर है, बदले में हमको क्या दे देता है? जो आउटपुट देता है वो क्या होता है? आउटपुट तो देता है, लेकिन क्या देता है? जैसे इनपुट लिया डेटा और आउटपुट दिया क्या? इंफॉर्मेशन। वाओ, व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, राइट। और कंप्यूटर ने कैसे किया? ये कंप्यूटर ने किया बाय सम प्रोसेसिंग। क्या की इसने? प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग का मतलब डू समथिंग, फॉलो सम मेथड, फॉलो सम वर्क, राइट। ये काम कंप्यूटर का है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आपके कंप्यूटर में आपने एक लिस्ट इनपुट करी, राइट। एक लिस्ट आपने इनपुट करी जिसमें बच्चों क्या लिखा हुआ है? आपकी कॉलोनी के बच्चों के नेम लिखे हुए हैं, और उसमें उनका एज लिखा हुआ है, राइट। एक कंप्यूटर को आपने एक लिस्ट दी जिसमें नेम लिखे हुए हैं बच्चों के, यहाँ पे नेम है, और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी एज लिखी हुई है, कंप्यूटर को दिया। और आप एक कॉलोनी में एक न्यू ईयर सेलिब्रेट होने वाला है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना रहे हैं आप। उस कमेटी में ये डिसाइड हुआ है कि जिनकी एज 15 ईयर्स से ऊपर है वो लोग आपके ऑर्गेनाइजिंग
कमेटी में रहेंगे, राइट। तो कंप्यूटर ने एक प्रोसेस किया। अब बच्चों कंप्यूटर की बात छोड़ो, मैं आपकी बात करता हूं। अगर आपको मैं बोलूंगा ऐसा करने के लिए तो आप क्या करोगे? आप लिस्ट लोगे और एज लोग देखोगे, यहाँ पे नाम देखोगे, नाम भी नहीं देखोगे बच्चे, आप एज देखोगे अगर स्मार्टली वर्क करना है, राइट। तो जहां जहां 15 से कम वैल्यू आए उसको आप काटते जाइए, काटते जाइए। जो जो 15 की ना है उसको आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। 15 से ऊपर वालों को छोड़ दीजिए, बाकी काट दीजिए। तो रहे बच्चे जो नाम है वो क्या होंगे? आपके रिक्वायर्ड नेम होंगे जिनको आप चाह रहे हैं। तो जो बचे हुए नाम है जो आप चाह रहे हैं, दैट इज योर इंफॉर्मेशन, दैट इज योर इंफॉर्मेशन। पूरी की पूरी आपकी जो लिस्ट थी वो डेटा थी, उसमें से जो हमने निकाला वो बच्चे इंफॉर्मेशन हो गई। यही काम बच्चे इन सम मैनर कंप्यूटर भी करता है और आउटपुट जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यूजर क्या होता है बच्चे? अ यूजर इज अ पर्सन who utilize a computer or network services। सिंपल यूजर कंप्यूटर की सर्विसेज को यूटिलाइज करेगा। वो आप हो सकते हैं, समटाइम मशीन्स भी होती हैं बच्चे यूजर, दैट इज अनदर थिंग। आजकल तो एआई का जमाना है, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको एआई भी पढ़ाऊंगा, डोंट वेरी। तब तक मैं इन भाई साहब की आईज बना देता हूं और माउथ भी बना देता हूं। नाउ ही लुक्स ग्रेट, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द मेमोरी। अब बात आती है बच्चे की, हमने बात करी मेमोरी की। जनरली हम लोग मेमोरी बोलते हैं, अपने दिमाग को मेमोरी बोलते हैं, बट एक्चुअली अवर mind having some memory and some processing capabilities also. Similarly in computer there is a CPU, central processing unit, along with the memory. So in this memory what happened, वो डेटा स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन कुछ भी स्टोर करेगा या फिर इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा। अ मेमोरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, हम बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं, बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह होता है, बट ब्रेन के एक पार्ट की तरह एक्चुअली होता है जहाँ पे हम चीज़ें याद रखने का काम करते हैं, राइट। हमारा माइंड बहुत बड़ा है, डोंट वरी, बट इन जनरल हम ये बोलते हैं और हम बोलने में बिल्कुल सही है। आप बोल सकते हैं मेमोरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन एंड इट इज यूज टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने के काम में लाई जाती है एंड इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करती है। ऐसा थोड़ी ना सिर्फ डेटा स्टोर करेगी। अगर मैंने आपको बोला है, कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व करना सिखाया है, अगर मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया है, जीडीसी निकालना सिखाया है सपोज, तो उसका जो मेथड है वो आपके दिमाग में ही तो रहता है ना, आप उसको याद रखते हैं ना। इन द सेम वे आप इंस्ट्रक्शन भी दिमाग में रखते हैं, और अगर जो चीज़ें याद हैं वो डेटा ही है एक्चुअली, तो वो डेटा भी आपको दिमाग में रहेगा। आपके दिमाग में आपके दोस्तों के नेम, आपके सब्जेक्ट्स के नेम, बुक्स के नेम, जाने क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में डेटा स्टोर रहता है, राइट। और किसी ने कुछ बताया है, सिखाया है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं पापा ने, मम्मी ने, तो वो भी हमें याद रहते हैं। इन अ सेम मैनर कंप्यूटर के पास भी इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों ही स्टोर रहते हैं। इन अ कंप्यूटर मेमोरी, द कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस, इन द कंप्यूटर स्टोरेज है where data is to be processed and instructions required for processing are stored, right, where data is to be processed, जहां पे डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है या प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड, राइट। जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोसेस करने के लिए, ऐसे देखिएगा कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं फॉर प्रोसेसिंग, किसी चीज को प्रोसेस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो, या फिर डेटा जिसको प्रोसेस करना है वो, दोनों ही स्टोर्ड होते हैं, राइट। मतलब क्या क्या स्टोर होगा? एक तो डेटा जिसको प्रोसेस करना है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, और कैसे करना है उसके इंस्ट्रक्शंस भी बच्चों हमारे कंप्यूटर में ही सेव होते हैं, राइट। नाउ द पॉइंट इज कंप्यूटर मेमोरी is of two types. Oh wow, the computer memory is of two type. Which are they? First is primary memory and second is the secondary memory, right? Second is secondary and first is primary memory. बच्चे हमारे पास भी एक्चुअली ह्यूमंस ब्रेन में भी दोनों ही मेमोरी होती है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। बड़ा दिमाग और छोटा दिमाग आपने सुना होगा, राइट। छोटा दिमाग इन दिस पीछे होता है, बड़ा दिमाग आगे होता है। इन अ सेम मैनर देयर आर आल्सो टू मेमोरीज, प्राइमरी एंड मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हम इनको भी समझने की कोशिश करेंगे आगे। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि और किस किस तरीके की आपकी
मेमोरीज हो सकती हैं। मेमोरी आपकी ये होगी प्राइमरी, एक होगी आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका हो सकता है रैम और हो सकता है रोम। सेकेंडरी मेमोरी में हो सकता है मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। अब ये काम क्या करने वाले हैं एक्चुअल में, इसको प्राइमरी बच्चे क्यों बोलते हैं ये मैं आपको पहले बता दूं तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसको प्राइमरी इसलिए बोलते हैं, चाहे वो रैम हो चाहे रोम, दोनों ही प्राइमरी हैं। क्योंकि प्राइमरी इसलिए बोलते हैं बच्चे, कंप्यूटर में जो सबसे प्राइमरी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है बच्चे सीपीयू, या फिर कह लें हम प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है बच्चे, आपके डेटा को प्रोसेस करता है, राइट। और वो डेटा को जब प्रोसेस करता है तो उसको क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। डेटा कहाँ स्टोर है बच्चे, मेमोरी में। तो वो ऐसी मेमोरी जो डायरेक्ट जिससे डेटा लेता है प्रोसेसर, चाहे वो लेता है या देता है, वो जो मेमोरी है, दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू दी योर प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच इज नोन एज सीपीयू और द प्रोसेसर, राइट। एंड वन थिंग मोर, दीज आर ऑफ द टू टाइप, या तो रैम होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर रोम होगी रीड ओनली मेमोरी, राइट। इसके डायरेक्ट कनेक्शन में होता है। इसलिए क्यों होता है, क्योंकि सीपीयू थोड़ा फास्ट होता है, और सीपीयू जितनी फास्ट, ये प्राइमरी मेमोरी तो नहीं होती है लेकिन एनफ एनफ ठीक ठीक फास्ट होती है, राइट। इसलिए ये डायरेक्ट अटैच में होता है। करने को तो सेकेंडरी मेमोरी से भी कराया जा सकता है, लेकिन ये बहुत स्लो होती है, इसलिए इनको हम पीछे रखते हैं, राइट। जो करंट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, या सपोज मूवी देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं या वर्ड या पेंट कुछ भी करते हैं बच्चे, जो करंट में यूज करा जा रहा है सॉफ्टवेयर, उन सब की चीजों को हम कहाँ रखते हैं बच्चे, प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंप्यूटर से उसका कनेक्शन है, राइट। जो चीजें हम अभी हाल फिलहाल में यूज नहीं कर रहे, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड रहती हैं। वेन एवर वी यूज इट फर्दर, वो क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगी और अपना काम सीपीयू करके वापस प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेज देगी। दैट्स टू सिंपल, दैट्स टू सिंपल। आप देखिए, आप कभी भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं, अगर आप देखिएगा और सडन कंप्यूटर आपका बंद हो जाए तो जो भी काम आपका खुला है सब बंद हो जाता है, क्योंकि वो वाला जो काम आप जो कर रहे होते हैं बच्चे, प्राइमरी मेमोरी की रैम मेमोरी में होता है। और ये रैम मेमोरी ऐसी है बच्चे, ये अपना सारा डेटा लूज कर देती है अगर इसकी पावर चली जाए, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम कंप्यूटर बंद करते हैं, ऑन दोबारा जब भी ऑन करते हैं 1 साल बाद भी करेंगे तो भी जो डेटा उसमें स्टोर था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ मेमोरी। नाउ दी there is something text about the primary memory, and what is that? First is what, primary memory is the main memory of the computer system, ये मैंने आपको बता दिया। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी भी बोल देते हैं, वो बिल्कुल उसके रिलेशन में रहता है सीपीयू के, राइट, कनेक्शन में रहता है। प्राइमरी मेमोरी डेटा इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। फिर वही बात इन्होंने बताई जो मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर। ओ वाओ, ये वाली बात भी मैंने अभी आपको बताई, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर, राइट, बिकॉज इट इज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, राइट। क्योंकि वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है तो उससे तो फास्ट होगा, वो नियरेस्ट है ना बच्चे। आप ये देखिए, जो चीज नियर होगी, नियरेस्ट होगी कंप्यूटर के, वो उससे ज़्यादा फास्ट, उससे फास्टली डेटा ट्रांसफर करेगी। तो जो आपकी इंटरनल मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है, वो कंप्यूटर के टच में डायरेक्ट होती है, दैट्स व्हाई इट इज फास्ट, right? Second is what, this is the type of primary memory, one is RAM and ROM, right? And this is your RAM, and RAM stand for random access memory because of the random selection of memory location। ये random selection का मतलब ये होता है बच्चे, अगर ये मेमोरी है, ये अगर मेमोरी है और ये मान लिया मेमोरी में घर बने हुए हैं, स्पेसेस बने हुए हैं जहाँ पे डेटा रहेगा, इन सब जगहों पे डेटा है ABC TUV 1 2 3 किसी तरीके का भी बच्चों डेटा अगर यहाँ स्टोर है, जब भी कंप्यूटर चाहेगा, कंप्यूटर का CPU या प्रोसेसर चाहेगा, इससे कोई भी डेटा उठा सकता है। रैंडम उठाने का मतलब ये है, ऐसा नहीं होगा कि पहले इस वाले को देखे फिर कहे नहीं ये नहीं चाहिए, फिर इसको देखे कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, फिर इसको देखे नहीं नहीं ये नहीं चाहिए,
ये देखे इसको नीचे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा, अगर सपोज ये वाला चाहिए ना बच्चे, तो डायरेक्ट इसी से कहेगा नाउ यू कम हियर, राइट, सीधे इसको डेटा को ले लेगा, राइट। सो दिस इज रैंडम। इट प्रेफर्स बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। बेटा इस मेमोरी में हम लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, मतलब उसमें से वैल्यू ले सकते हैं और रख भी सकते हैं। इट स्टोर्स डेटा टेम्परेली, परमानेंट नहीं है बच्चे, ये टेम्परेरी है, लाइट चली गई तो डेटा चला जाएगा आपका, राइट, बिकॉज इट इज टेम्परेरी मेमोरी। आप अगर कोई चीज ऑन कर रखी हुई है, सिस्टम बंद हो गया तो वो चली जाएगी, क्योंकि वो सिस्टम ऑफ होते ही चले जाती है। क्यों ऐसा, बिकॉज रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। इसको ये स्पेशल वर्ड से यूज करते हैं कि वोलाटाइल होती है, वोलाटाइल का मतलब टेम्परेरी है। That is why if power failures happens in the system during memory access, then you will lose your data permanently। हमेशा के लिए वो डेटा चला जाएगा, बड़ी खतरनाक मेमोरी है, राइट। नाउ सेकेंड इज द रोम। रोम इज ऑल्सो प्राइमरी मेमोरी। दिस इज सेकेंड प्राइमरी मेमोरी। और ये क्या करती है, रोम ऑफर्स ह्यूज टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स टू सेव डेटा एज इट इज परमानेंट मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब ये हो गया बच्चे, प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये नहीं होता है कि वो टेम्परेरी है, ये रोम भी तो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, राइट, लेकिन ये तो परमानेंट है, राइट। इट वर्क्स विद द रीड ओनली ऑपरेशन। बच्चे इसमें राइट नहीं होता, इसमें राइट नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ रीड होता है, आप पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। जब आप कोई सिस्टम नया मंगवाते हैं तब जो ऑन होता है, जो वैल्यूज दिखती हैं वो सब आपकी रोम में लिखी होती हैं। इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल है, दैट्स मीन इट्स अ परमानेंट मेमोरी। दैट इज व्हाई व्हेनेवर पावर फेलियर occurs during ROM memory works in computers, then no data lose happens। Okay, great। It is used where the programming requires no changes। जहाँ जैसे सिस्टम को हम ऑन करते हैं ना बेटा, जब ऑन होने के लिए जो प्रोग्रामिंग लिखी गई ना विद इन द सिस्टम, वो कभी चेंज नहीं करी जाएगी। जिसने कंप्यूटर बनाया उसने उसमें प्रोग्राम हार्ड प्रोग्रामिंग कर रखी है, दैट इज स्टोर्ड इन योर रोम ओनली, राइट। फिर जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे फर्दर, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वो सारे के सारे रैम में आएंगे व्हेन यू यूज। ठीक है, जब यूज नहीं कर रहे होगे तो फटाक से वो कहाँ चले जाएंगे, आपके सेकेंडरी मेमोरी में, राइट। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है बच्चे, अभी हम देखने वाले हैं इस प्लेस पे। व्हाट इज द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट वांट टू चेक माय रिकॉर्डिंग is on or not। All secondary storage devices which are capable of storing high volume data is referred to secondary memory। बड़ी बड़े सॉफ्टवेयर्स, बड़ी बड़ी मूवीज, बड़े बड़े सॉन्ग्स, इमेजेस, गेम्स, सारा का सारा बच्चे कहाँ है, सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हैं, क्योंकि सारा का सारा एक बार में तो हम यूज करते नहीं, ठीक है, इसलिए हम सारा स्टोरेज में रखते हैं, क्योंकि ये एक परमानेंट है, राइट। और ये बड़े ह्यूज वॉल्यूम डेटा के लिए यूज में लाई जाती है। लेकिन हम इसको क्यों यूज नहीं करते, डायरेक्ट कंप्यूटर के टच में क्यों नहीं रहती है, क्योंकि इट्स स्लो देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है। फिर आप कहोगे फिर सर सेकेंडरी क्यों, प्राइमरी में रख लेते हैं हम सारा डेटा, जो कि रैम है उसमें रख लेते हैं, लेकिन रैम बेटा परमानेंट नहीं है, ठीक है। फिर आप कह सकते हो नहीं फिर रोम में रख लेते हैं, रोम तो परमानेंट है, लेकिन बच्चे रोम अगर आप यूज करोगे तो रोम इतनी महंगी बहुत होती है, इतना ज़्यादा डेटा अगर आप रोम में रखोगे, उतनी बड़ी रैम आप बनाओगे ना, तो बच्चे उसमें 10 कंप्यूटर आ जाएंगे, तो वो इसलिए कॉस्टली हो जाएगी। इसलिए हमने दूसरा सोल्यूशन हमारे पास है विच इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। ओके, हाउएवर इट कैन सेव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेटा इन दी रेंज ऑफ गीगाबाइट टू टेराबाइट। आपने सुना है ना, आपके मोबाइल का होता है जो मेमोरी कार्ड 8 GB का, 16 GB का, 4 GB का, वो GB क्या होते हैं, G स्टैंड फॉर गीगा एंड बाइट स्टोर, बाइट बी स्टैंड फॉर बाइट। तो जो गीगाबाइट हो गया बच्चे, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा अभी नहीं आपको है, लेकिन बता देता हूँ, दिस इज GB, ठीक है, दिस इज जीबी, ठीक है। आप जितने भी जीबी का होगा आपका, मतलब उतना डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा, राइट। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, राइट। दिस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड बैकअप स्टोरेज और मास स्टोरेज मीडिया। मास मतलब बहुत ज्यादा, या फिर बैकअप कह लें,
राइट, अदरवाइज आप इसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानिए। इसमें आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चे, ये हो गई फर्स्ट टाइप की मैग्नेटिक मेमोरी, स्टोर्स डेटा इन द मैग्नेटिक फॉर्म, राइट, इट हैज हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इट डज नॉट यूज अ लेजर टू रीड और राइट डेटा। ठीक है, इसको रीड और राइट करने के लिए लेजर की जरूरत नहीं होती है, इसमें एक हेड होता है जो वैल्यूज को टेप पे चलता है और वैल्यूज को रीड करता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क हैं या फिर फ्लॉपी डिस्क हैं, दीज ऑल आर द मैग्नेटिक मेमोरी। ऐसे ही ऑप्टिकल मेमोरी भी होती है बच्चे, जो आपने देखी होगी, जो आपने सीडी प्लेयर में हम सीडी रोम या सीडीआर लगाते हैं, वही होती है। स्टोर डेटा ऑप्टिकल एंड यूज द लेजर टू रीड और राइट। एक लेंस बच्चे लगता है, वो लेंस, ये आपकी सपोज सीडी है, उसके ऊपर लगता है, ये सीडी रोटेट करती है, और जब ये रोटेट करती है फिर वो जो आपका लेंस है, लेजर लेंस, वो डेटा रीड कर लेता है, राइट। इट हैज़ लेस स्टोरेज देन दी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से बचा इसमें स्टोरेज कम होता है, राइट। जैसे आपके सीडी में आएगा एक मूवी, आपकी हार्ड डिस्क में सपोज आ सकती हैं 100 मूवी, तो फिर फर्क तो पड़ ही जाएगा। डेटा एक्सेसिंग इज हाई एज कंपेयर टू दी फ्लॉपी। फ्लॉपी से बच्चों थोड़ा सा इसकी स्पीड हाई होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज आर द सीडी रोम्स एंड सीडीआर, राइट, जिसको हम नॉर्मली सीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडी बोलते हैं, ठीक है। सीडी रोम में हम बच्चे राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, जो जो हम मूवीज़ वगैरह देखने के लिए काम लाते हैं। कुछ ऐसी सीडी हैं जिसपे हम राइट भी कर सकते हैं, राइट। नाउ कम टू दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हम बच्चे पढ़ क्या रहे हैं? हम सी प्लस प्लस कोडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं अभी। वी आर जस्ट क्रिएटिंग अवर सेल्फ टू मेक टू बिकम अ कोडर, राइट। सो अब अभी हमने आपको बताया वो है कंप्यूटर्स फंडामेंटल बताया आपको कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर कैसे इनपुट लेता है, कैसे वो प्रोसेस करता है, फिर वो कैसे आउटपुट देता है, और इंस्ट्रक्शंस और डेटा वो अपने सीपीयू में, अपनी मेमोरी में रखता है। तो वो जो डेटा और वो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेमोरी में आते कहाँ से हैं? अब बच्चे उसकी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। सो दिस इज अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ वोकैबुलरी and set of grammatical rules for instructing a computer to perform specific task। जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैब होती है, मीन्स वर्ड्स होते हैं, और सेट ऑफ रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं कि कहाँ नाउन, कहाँ एडजेक्टिव, कहाँ वर्ब, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा, ये सारी चीज़ें कब और कहाँ लगेंगी और किस पे लगेंगी, जो आप वर्ड्स यूज़ करेंगे, राइट। यही होता है एक लैंग्वेज में। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अपनी वोकैब्स हैं, अपने कीवर्ड्स हैं, उनके सेट ऑफ अपने रूल्स हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्ट किसको कर रहे हैं? इंग्लिश या हिंदी बच्चे ह्यूमंस को इंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसको? कंप्यूटर को। तो ये तो बड़ी बात हो गई, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लैंग्वेज बनाई गई है, राइट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हमने जब जाना था कि आपके मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों ही स्टोर होते हैं, राइट, बोथ आर दी स्टोर्ड। ये आते कहाँ से हैं? एक प्रोग्राम देता है। प्रोग्राम किस में लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक वोकैब है विद दी सम सेट ऑफ रूल्स, और वो किसको इंस्ट्रक्ट करेगी? कंप्यूटर को। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट विच इज व्हाट? इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। इन दिस सेक्शन व्हाट हैपन? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग में क्या थी, फिर उसके बाद क्या इवॉल्व हुआ, क्या चेंजेस उसमें आए, फिर क्या चेंजेस आए, उसके बारे में थोड़ा सा बस ओवरव्यू लेने वाले हैं। सबसे पहले थी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद में बच्चों आई हमारे पास सेकेंड जनरेशन, राइट, और उसके बाद में आई हमारे पास बच्चों थर्ड जनरेशन। आप इन तीन नाम को तो जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का मतलब बच्चे होता है मशीन लैंग्वेज से, आप ये बात भी याद रखिएगा। सेकेंड जनरेशन से मतलब होता है बच्चे असेंबली लैंग्वेज से, और थर्ड जनरेशन मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से होता है। ये वो लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, मतलब सी और सी प्लस प्लस एंड एनी अदर लैंग्वेजेस, राइट।
तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हम क्यों नहीं यूज करते, हम ये देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। एक्चुअल में फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज होती थी उसको हम बोलते थे मशीन लैंग्वेज, मतलब मशीन की लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में होता क्या था, स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स गिविंग मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। अलग अलग मशीन्स के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, और बच्चे वो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नंबर की फॉर्म में है। सपोज ये कोई इंस्ट्रक्शन है नंबर की फॉर्म में है, और जितना आसान ये दिख रहा है उतना भी आसान नहीं होता है बच्चे। हर एक ये जो 4 लिखा है ना, 4 भी बच्चे कन्वर्टेड होगा किसमें, बाइनरी कोड में। मींस हर एक लेटर भी आपका कन्वर्ट होगा अलग अलग बाइनरी बाइनरी में। तो एक बहुत लंबी 01010101 की स्ट्रिंग बनती है। अब बताओ बच्चे, आप ऐसा कोड अगर आपको लिखना है, सपोज ऐसा कोड आपको लिखना है सपोज, क्या आप लिख पाओगे? 0010 याद करते करते बहुत मुश्किल हो जानी है। दैट इज, ऐसा नहीं है कि लोगों ने किया नहीं है, बिल्कुल किया है, तभी कंप्यूटर आगे इवॉल्व हो पाया। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज बिकॉज देयर आर सम स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स। नंबर ही नंबर होते हैं, नथिंग एल्स, राइट। सेकेंड, फिर इवॉल्व होके बच्चे आई सेकेंड जनरेशन, इससे थोड़ा सा एडवांस हुआ विच इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज। उसमें भी क्या हुआ बच्चे, इंग्लिश लाइक एब्रीवेशंस होंगे रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्री कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है, विच इज ट्रांसलेटेड वाया assemblers टू दी मशीन लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है बच्चे, इस असेंबली लैंग्वेज में जो अगर प्रोग्राम लिखते हो, इसको मैं एल बोल देता हूँ असेंबली लैंग्वेज को, इसको अगर कंप्यूटर से रन करवाना है तो पहले बच्चे ये क्या होगा, एमएल में बदला जाएगा, मीन्स मशीन लैंग्वेज में बदला जाएगा। और वो भी किसकी मदद से, एक असेंबलर नाम का प्रोग्राम होता है वो इसको करता है, राइट। और ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये क्या कर रहा है, ये बेसिक ऑपरेशन ऐड, लोड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके के बेसिक ऑपरेशंस आपकी असेंबली लैंग्वेज में होते थे। लाइक जैसे इन्होंने कहा कि लोड बेस पे, लोड बेस पे का मतलब बेस पे किसी की सैलरी की बात है कि वो लोड करी जाए, मतलब मेमोरी में लाई जाए, मेमोरी में मतलब प्रोसेसर के पास लाई जाए मेमोरी से, राइट। फिर क्या किया जाए, ऐड किया जाए ओवर पे, ऐड किया जाए ओवर पे मतलब बेस पे पहले से रखिए। इधर देखिएगा इस साइड में, बेस पे पहले आ गई सपोज 1000 रुपीज, दिस इज बेस पे, और कह रहे हैं ऐड करिए, इसी में ऐड करिए क्या, ओवर पे, ओवर पे लाए और इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, ओवर पे लाए सपोज 500 रुपीज और इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, और इसको ग्रॉस पे में स्टोर कर दीजिए। थर्ड लाइन देखिए, ग्रॉस पे में स्टोर कर दीजिए, राइट, स्टोर कर दीजिए किसमें, ग्रॉस पे में, विच इज 1500। तो इस तरीके के बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे। फिर आई बच्चों आपके पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, इन दिस लैंग्वेज इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है बच्चे, कोड इज वेरी सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश, बड़ा ही सिंपल हो गया हमारा कोड। बहुत सारी बच्चे ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें बहुत ही इजीली हम लिख सकते हैं और उसको हम रन करा सकते हैं। सो यूज मैथमेटिकल नोटेशंस भी होते हैं और कुछ इंग्लिश के वर्ड विच इज ट्रांसलेटेड वाया कंपाइलर्स, राइट। कंपाइलर उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा। इस तरीके की बात लिखी जाती है। ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है नीचे, ग्रॉस पे, बिल्कुल लास्ट में देखिए जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ग्रॉस पे एक वेरिएबल है जिसमें बेस पे और ओवर टाइम पे को जोड़ के रख दिया जाए। दैट्स वेरी सिंपल। आप समझिए यही यही जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन है, वही इंस्ट्रक्शन बच्चे ये वाला असेंबली लैंग्वेज में सेकंड जनरेशन में लिखा गया है, और सेम इंस्ट्रक्शन विच विल बी रिटन इन दी फर्स्ट जनरेशन। और ये भी और नहीं, ये भी 1010 की फॉर्म में होगा विच इज अ ह्यूज स्ट्रिंग ऑफ 1 and 0. So this is very difficult to learn. And assembly language थोड़ा easy होता है उसको learn करना as compared to the machine language. लेकिन high level language जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले lectures में, C या C++, of course C++ पढ़ेंगे, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट। ये बच्चों जो हमने अभी तक आपको बताया वो उसकी हिरार्की है। वो हिरार्की में क्या है, सबसे अंदर कोर में आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर किसका, कंप्यूटर का हार्डवेयर। उस कंप्यूटर को, हार्डवेयर को कौन रन कराता है बच्चे, मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस रन कराते हैं। मशीन लैंग्वेज
इंस्ट्रक्शन कहाँ से आते हैं बच्चे? असेंबली लैंग्वेज से आते हैं, राइट। या फिर मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ सकते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज से आ सकते हैं, और वो हार्डवेयर से काम कराएगा। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? फॉर्टन है, सी है, और सी प्लस प्लस है, पास्कल है, जावा, दीज ऑल आर दी हाई लेवल लैंग्वेज। तो बच्चे आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम इसको लर्न करने वाले हैं at this level, right? We are going to code in the C++ in the next lecture, not now. I'm just telling you कि आगे के जो सीरीज है, आगे के जो लेक्चर हैं, उसमें हम कोडिंग की ही बात करने वाले हैं, right? So now what does the computer understand? What does the computer understand? Computers only understands मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। बड़ी बात है ये, आप याद रखिएगा, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है, मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को, राइट। क्यों? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है विच इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर, और हार्डवेयर एक मशीन है, तो मशीन की लैंग्वेज ही समझ में आएगी, राइट। एंड असेंबलर, अब बात करते हैं कि असेंबलर क्या चीज होती है, कंपाइलर क्या होती है, या फिर इंटरप्रेटर क्या होता है, राइट। सो this is your assembler. Assembler is nothing. Assembler is a program that converts assembly level language, means उसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो कौन सी, जो आपकी सेकेंड जनरेशन में थी, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब ये हुआ कि आपकी अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज है या फिर लो लेवल लैंग्वेज है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो इसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? आपको लगाना पड़ेगा असेंबलर। मीन्स असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है, राइट, वो मशीन लेवल में बदल देगा, सिंपल। एंड इन द सेम मैनर देयर इज अ कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा? वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदल देगा। मीन्स अ कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो प्रोग्राम लाइक एन असेंबलर दैट ट्रांसफॉर्म कोड रिटन इन high level programming language into the machine language. It is a program which translates the human रीडेबल कोड, जो हम लोग पढ़ लेते हैं ना, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा है, मैं पढ़ के आपको बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट भी बता दूंगा। टू अ लैंग्वेज अ कंप्यूटर प्रोसेसर अंडरस्टैंड्स, मीन्स वन एंड जीरो बिट्स में क्या मतलब क्या है? वन और जीरो की फॉर्म में वो बदल देगा, और वन और जीरो की फॉर्म जो होती है दैट इज नथिंग बट अ मशीन कोड, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, दिस इज योर मशीन कोड। द कंप्यूटर प्रोसेसेस द मशीन कोड टू परफॉर्म द करस्पॉन्डिंग टास्क। और वो जब कंप्यूटर प्रोसेस करेगा उस मशीन कोड को, तो क्या करेगा, क्या परफॉर्म करेगा? उसके करस्पॉन्डिंग जो भी टास्क, जो भी वर्क डिफाइन है, वो कंप्लीट होगा। नाउ कम टू द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो लाइक अ कंपाइलर, राइट। दोनों का काम बच्चे सेम है, इंटरप्रेटर भी वही काम करता है और कंपाइलर भी काम वही करता है, बट दी वे इज डिफरेंट, तरीका अलग अलग है। देखते हैं क्या चीज है। एन इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट। यहां आपको, आप इतनी बात समझिएगा, ईच हाई, ईच लिखा हुआ है, इस वर्ड को मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं, कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू द मशीन कोड। और कंपाइलर में बच्चों क्या हो रहा था? क्या यही हो रहा था? ये नहीं हो रहा था, ये हो रहा था, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन कोड। मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है हाई लेवल का ही कोड है, हाई लेवल प्रोग्राम है, दैट कन्वर्ट्स इनटू द machine level language, right? HL is converted to the, in compiler what happened? HL high level converted into ML, right? इसमें बच्चों एक्चुअल में होगा यही, लेकिन पूरे का पूरा प्रोग्राम नहीं। आप देखिए क्या लिखा हुआ, ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट। ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट मतलब अगर आपके प्रोग्राम में 10 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5 ही है मान लीजिए, तो पहले ये फर्स्ट वाला एमएल में बदलेगा, फिर सेकंड वाला एमएल में बदलेगा,
फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, ऐसे ऐसे करके वो एमएल में बदलेंगे। बट अल्टीमेटली बेटा सारे ही बदल गए एमएल में। इस तो हम कह सकते हैं ना कि इंटरप्रेटर भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को एमएल में बदलता है, लेकिन एक एक करके करता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे का पूरा प्रोग्राम एक साथ करता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो दिस इंक्लूड सोर्स कोड, प्री कंपाइल्ड कोड एंड स्क्रिप्ट। इसमें आपका सोर्स कोड होगा, फिर उसको प्री कंपाइल किया जाता है, फिर आपकी स्क्रिप्ट्स आती हैं, राइट। बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स डू द सेम जॉब, which is converting high level programming language to machine code, राइट। दोनों का सेम काम है, लेकिन क्या डिफरेंस है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कंपाइलर कंपाइल्स एंटायर सी सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, सी हो चाहे वो सी सी प्लस प्लस हो, और इंटरप्रेटर्स कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू intermediate code, and then this intermediate code is executed line by line, right। सोर्स कोड से क्या बनता है बच्चे, इंटरमीडिएट कोड, जिसको यहाँ पे प्री कंपाइल्ड कोड कह रहे हैं, और फिर देन दिस इंटरमीडिएट कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, जो स्क्रिप्ट बनती है, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नाउ द पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। आइए देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक्स फॉलो करी जा सकती हैं। उन टेक्निक्स के बारे में मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर में थोड़ा सा आपको बताया था कि एल्गोरिथम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं। दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चों प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब लाइक योर मैथ्स क्वेश्चंस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हेल्प डायग्नोज द सिचुएशन सो दैट योर फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम, राइट। सिचुएशन सो दैट योर फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, डायग्नोज द सिचुएशन, सिचुएशन को संभालने में हेल्प करेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्योंकि एक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा कि यू नो द व्हाट इज द प्रॉब्लम, तभी तो आप इसको डायग्नोज कर पाएंगे। जब तक डॉक्टर को ये नहीं पता चलता कि डिजीज क्या है, तब तक वो आपको सही नहीं कर सकता, राइट। वंस ही नोज व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द डिसीज, ठीक है, तब वो आपको उससे वैसी दवा दे देगा। इन द सेम मैनर, अगर आपको प्रॉब्लम का पता नहीं चला, मींस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट नहीं है, तो आप उसको डायग्नोज नहीं कर सकते, राइट। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हेल्प्स डायग्नोज द सिचुएशन सो दैट योर फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम। हेल्पफुल टूल्स एट दिस स्टेज, उस स्टेज पे कुछ टूल्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं, विच इज एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। बाय क्रिएटिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स वी reach to the your accurate answer for identifying the expected steps of the process। हम एल्गोरिथम बनाना शुरू करेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फ्लो चार्ट बनाना शुरू करेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जरूरी थोड़ी ना वो बन जाए। यू जस्ट propose that solution could be a solution of your problem। जो solution आप बता रहे हैं प्रॉब्लम का, हो सकता है कि वो आपकी प्रॉब्लम का solution हो। फिर अगर एल्गोरिथम आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं, एक्यूरेट जो भी एल्गोरिथम की वेज हैं या फ्लो चार्ट बनाने के तरीके हैं, उसमें आप कामयाब हो जाते हैं, तो ये माना जाएगा योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो देयरफॉर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, देयरफॉर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, collect and analyze इंफॉर्मेशन एंड डेटा। इंफॉर्मेशन लें, एनालाइज करें, डेटा लें, एनालाइज करें। टॉक विद पीपल फैमिलियर विद द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से जो फैमिलियर लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। इफ एट ऑल पॉसिबल व्यू द प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड, राइट, व्यू द प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड। if at all possible then view the problem first hand, right। and next is what, confirming all findings। फिर आप कंफर्म करें कि क्या सारी चीजें मिल चुकी हैं, जितनी भी आपकी जो पॉसिबल चीजें थी, इफ एट ऑल पॉसिबल, जो भी आपको से हो सकता था वो आप सब आपने कर लिया, ठीक है। फिर आप व्यू द प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड, फिर आप प्रॉब्लम का फर्स्ट हैंड देखेंगे कि क्या है एक्चुअली, कंफर्म करेंगे जो भी फाइंडिंग्स आपको मिल गई, मीन्स what the things you collect, all possible things you collect, and then view the what is the problem, ठीक है।
फिर उसको आप प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है, उसका प्रपोज सोल्यूशन है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नाउ हमने बताया आपको कि दो टूल्स आपके पास हो सकते हैं, लाइक एल्गोरिथम हो सकता है, एक हो सकता है आपका फ्लो चार्ट हो सकता है। थोड़ी सी बात अब इसकी हम डिस्कस करेंगे, फिर इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे फिर सी को डिस्कस करने के लिए। आइए देखते हैं व्हाट इज द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज अ पार्ट ऑफ द ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। एन एल्गोरिथम इज व्हाट, ये देखिए बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, एन इफेक्टिव प्रोसीजर, एन इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। क्लास ऑफ प्रॉब्लम एक तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है, इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कुछ नंबर होंगे, फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट का मतलब होता है कुछ लिमिट हो कि भाई 10 स्टेप्स में सॉल्व होगा, 100 स्टेप में सॉल्व होगा, 1000 स्टेप में सॉल्व होगा, तो ठीक। अगर कोई कहता है नहीं जी इन्फिनिटी स्टेप में सॉल्व होगा, दैट्स मीन वो कभी सॉल्व नहीं होगा, नेवर सॉल्व, ठीक है, नेवर सॉल्व। तो जब कभी सॉल्व नहीं होगा तो वो एल्गोरिथम किस काम की। सो एन इफेक्टिव प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर या फिर इफेक्टिव मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम। सॉल्विंग अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम बच्चे इसलिए लिखा गया है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो उसके जैसी दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। मतलब कि जैसे कोई प्रॉब्लम आपकी कोई सॉल्व कर रहा है, आप तो वो प्रॉब्लम जो है आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है आपका जो क्लासमेट है सेम प्रॉब्लम वो भी सॉल्व कर फेस कर रहा होगा, तो अगर आपकी सॉल्व होगी तो इसकी भी सॉल्व होगी। तो यही कह रहे हैं अगर सेम प्रॉब्लम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं तो वो इफेक्टिवली प्रोसीजर उसका इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप होने चाहिए। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एवरी एल्गोरिथम शुड हैव द फॉलोइंग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। फर्स्ट इज इनपुट, इनपुट मिलना चाहिए, इनपुट मिलेगा तो ऑफकोर्स आउटपुट हम चाहते हैं, इसीलिए हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं। थर्ड इज डेफिनेटनेस होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमें मिलने वाला है आंसर वो करेक्ट मिलना चाहिए, जो आउटपुट मिलने वाला है वो डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन होना चाहिए। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, इफेक्टिव का मतलब ये है बच्चे एक लिमिटेड टाइम में आ जाए, ऐसा भी ना हो कि मैंने आपसे पानी मंगाया पीने के लिए और आप लौट के ना आए, हम वेटिंग स्टेट में ही हैं, ठीक है, या आए भी तो 10 साल के बाद है, दैट इज नॉट इफेक्टिव ना। इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम तो बच्चे कम से कम वो प्रॉब्लम उससे पहले तो सॉल्व कर दो कि जहां से वो प्रॉब्लम आई है वही ना खत्म हो जाए। सो दिस इज द इफेक्टिवनेस, द taking less time to solve your problem, it is effective, and at least जो भी वो एल्गोरिथम है वो टर्मिनेट तो होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर एल्गोरिथम इज नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब एंडिंग से है, अगर आपकी एल्गोरिथम एंड नहीं कर रही है तो वो किस काम की, वो तो फिर कीप डूइंग होती जाएगी। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपने वो काम कर लिया, आप क्या कहेंगे, कर रहे हैं। फिर आपसे कोई पूछता है 4 दिन बाद, वो कर लिया, नहीं कर रहे हैं। अब भाई आप जब हमेशा यही बोलते रहेंगे कि कर रहे हैं कर रहे हैं, इसका मतलब आप कभी नहीं करेंगे, है ना। इन द सेम वे अगर एल्गोरिथम टर्मिनेट नहीं हो रही, दैट्स मीन दैट एल्गोरिथम इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, right? So these are the characteristics of the algorithm and the definition of the algorithm. Now come to the one example of the algorithm. There is one example to find largest of three numbers. There is a, यहाँ पे मैंने क्या लिखी हुई है, एक एल्गोरिथम लिखी है 3 नंबर में लार्जेस्ट ढूंढने का। देखिए बड़ी सिंपल सी है, बड़ी जल्दी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आए बच्चों तो वीडियो रोक के दोबारा देखिएगा। देखिए स्टार्ट करेंगे, रीड 3 नंबर्स, मतलब कि इनपुट लिया गया, दिस इज 1 नंबर, num1, दिस इज सेकेंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर। 3 नंबर्स बच्चे इनपुट कराए गए, ये तो इनपुट वाला हो गया। इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो गो टू स्टेप नंबर 5, मतलब कि स्टेप नंबर 5 यहाँ नीचे देखिए, स्टेप नंबर 5 पे चले जाइए, राइट। अगर ऐसा नहीं है, इफ नंबर 2 3 से बड़ा है तो आप प्रिंट कर दीजिए प्रिंट नंबर 2 इज लार्जेस्ट, एल्स प्रिंट नंबर 3 इज लार्जेस्ट, राइट, एंड गो टू स्टेप 6 विच इज द एंड स्टेप, राइट। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। मान लेते हैं जो नंबर 1 है वो 1 ही है, और जो नंबर 2 है वो 2 ही है, और जो नंबर 3 है वो 3 है, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं नंबर 1 आपका क्या है, 1 है, और नंबर 2 क्या है बच्चे, 2 है। क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं है। जब नहीं है तो हम स्टेप 5 पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे, देखते हैं क्या नंबर 2 3 से बड़ा है, नहीं है।
जब नहीं है तो बच्चे इसमें जाएंगे। इसका मतलब क्या है, प्रिंट नंबर 3 इज लार्जेस्ट। हाँ ऑफ कोर्स 3 इज द लार्जेस्ट। मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, नंबर 1 को 3 बना देता हूँ, नंबर 2 को 2 बना देता हूँ, नंबर 3 को 1। अभी देखते हैं लार्जेस्ट क्या है, नंबर 1 3 वाला है, यही आना चाहिए। देखिए यहीं पे फेल हो जाएगा। थर्ड इस पे स्टेप पे गए, इफ नंबर वन बच्चों कितना है, 3 है। 3 इज ग्रेटर देन नंबर 2 आपका 2 है। 3 इज ग्रेटर देन 2, यस। देन वेयर गो, स्टेप 5 पे गए। स्टेप 5 पे गए, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3। नंबर 1 आपका 3 है और नंबर 3 आपका 1 है, यस। देन प्रिंट नंबर 1 इज लार्जेस्ट। ठीक है बच्चों, इसमें काम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 3 नंबर हैं, राइट। पहले हम क्या कहते हैं, नंबर 1 को नंबर 2 से कंपेयर कराते हैं, ये पता करते हैं कि बताओ कौन सा बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है, अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा है, इसका मतलब ये है कि अगर ये ऐसा है तो ये वाला नंबर, अगर नंबर 1 अगर 3 से भी बड़ा हो जाए तो बच्चे क्या है, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और अगर ये वाला नंबर यहाँ पे फिक्स हो चुका है कि 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, अगर ये वाली बात फेल हो जाए मतलब कि ये नंबर 3 आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। इस आप इस इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, देन आप इसको एल्गोरिथम को समझ में ना आए तो बार बार नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 की वैल्यूज को आप बदल के रखिए। 3 4 5 6 7 8 जो भी आपको रखनी है, 13 14 1800 जो भी वैल्यू रखनी है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 की वैल्यू रखिए। फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा बच्चे। और चलने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इस स्टेज पे आपको सिर्फ यही सीखना है कि किसमें चलते कैसे हैं। इफ दिस इज दिस, अगर ये करेक्ट होगा ठीक तो आप इधर जाएंगे, अगर ये करेक्ट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे चले जाइए। इफ दिस इज करेक्ट तो यहाँ जाइए, अगर करेक्ट नहीं है तो यहाँ जाइए। एल्स का मतलब ये होता है, राइट। इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे, कई सारे नंबर्स के साथ यूज करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस अ सिंपल एल्गोरिथम। नाउ अच्छा बच्चे, अगर एल्गोरिथम लिखना आप या समझना नहीं जानेंगे तो प्रोग्राम कभी नहीं लिख पाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, राइट। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम इज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर। अनसॉर्टेड का मतलब कि भाई ऐसा लिखा हुआ है 10 है, 2 है, 3 और ये आपका 13 है, 1 है, 18 है, 2 है, 5 है। ये बच्चे एक लिस्ट है, ठीक है। अनसॉर्टेड है मतलब कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में नहीं लिखा हुआ है। दिस इज अनसॉर्टेड, एक लिस्ट है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इस लिस्ट में से एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है, राइट। आपको अगर मैं बोलता हूँ निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, आप ये बताइए। आप पहली वैल्यू को रीड करिए, मान लीजिए कि ये आपकी लार्जेस्ट है, ठीक है। और इसको अगली वैल्यू से कंपेयर करिए। मैंने इससे कंपेयर किया कि क्या 10 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 10 3 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल है, आगे बढ़ जाइए। क्या 10 13 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। जब 10 13 से बड़ा नहीं और लार्जेस्ट नंबर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया अभी तक की जो लिस्ट है उसमें आपका 13 सबसे बड़ा है। आगे बढ़िए, अब जो काम 10 के साथ कर रहे थे वो 13 के साथ करेंगे। क्या 13 1 से बड़ा है, बिल्कुल है। क्या 13 18 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। तो अब फिर देखिए, फिर अब आपका 18 लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। अब 18 क्या 2 से बड़ा है, बिल्कुल है। 18 क्या 5 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल है। दैट्स मीन लास्ट में क्या बचा, 18। सो 18 इज योर आंसर। आप देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 18 ही है। So this is the procedure to solve this problem, how to find the largest number in the unsorted list, right। ये हाई लेवल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। एज्यूम द फर्स्ट आइटम इज द लार्जेस्ट। इन्होंने कहा कि पहला आइटम, जैसे मैंने 10 को माना, यही आपका लार्जेस्ट आइटम है, राइट। फिर क्या करें, लुक एट ईच ऑफ द रिमेनिंग आइटम्स इन द लिस्ट एंड इफ इट इज लार्जर देन द लार्जेस्ट आइटम सो फार मेक अ नोट ऑफ इट। मतलब आप इसको सबसे कंपेयर करिए, अगर इससे बड़ा कोई मिले तो उसको बड़ा बना लीजिए, फिर वही काम रिपीट करना शुरू कर दीजिए, राइट। द लास्ट नोटेड आइटम इज द लार्जेस्ट इन द लिस्ट व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीट। जो लास्ट में एलिमेंट बचेगा बच्चे, वही है लार्जेस्ट, right। So this is the process to solve this algorithm. Now there is another
problem, right? In this problem, what is going, फॉर्मल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रिटन इन प्रोज बट मच मच क्लोजर टू द हाई लेवल लैंग्वेज। एल्गोरिथम का एक और बात लिखी गई है एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। एक प्रोज में लिखा जाता है बट वेरी क्लोज, इंग्लिश में लिखा है बट वेरी क्लोज टू द हायर लेवल लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। द फॉलोइंग इज द मोर फॉर्मल कोडिंग ऑफ द एल्गोरिथम इन सूडो कोड, ठीक है। ये थोड़ा और प्रोग्रामिंग के करीब है, मीन्स कोई चीज इंग्लिश में लिखी हुई है नॉर्मल प्रॉब्लम, ठीक है, वो इंग्लिश से आपकी आ गई किसमें, सूडो कोड में, ठीक है। सूडो मतलब जो आपकी इंग्लिश में एल्गोरिथम लिखी हुई है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सूडो कोड में। वो सूडो कोड क्या होगा बच्चे, थोड़ा सा फॉर्मल कोडिंग के पैरामीटर्स को फॉलो करेगा। लाइक जो पहले वाला था ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ था, ठीक है, एल्गोरिथम। नाउ दिस इज इन दी सूडो कोड, वही सेम बात लिखी हुई है इसमें भी। लार्जेस्ट नंबर को ही हम फाइंड कर रहे हैं। अ नॉन एम्प्टी लिस्ट, इनपुट क्या होगा, अ नॉन एम्प्टी लिस्ट ऑफ नंबर एल। जो एल था जब जाने की एक लिस्ट जिसमें वैल्यूज हैं, सपोज है इसमें 10 है, 13, 3 है, 2 है, 18 है, 5 है, ये आपकी लिस्ट है। नॉन एम्प्टी है मतलब खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब एल में कोई वैल्यू ना हो, ऐसी नहीं चलेगी। सो यहाँ पे इनपुट के फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख दिया गया है, इनपुट क्या आना है, एक नॉन एम्प्टी ऐसी लिस्ट जो खाली ना हो, किसकी, नंबर्स की, राइट। आउटपुट क्या देगा, ये लार्जेस्ट नंबर देगा। किसका लार्जेस्ट, लिस्ट में जो एलिमेंट है उनका। कैसे देगा, आइए देखते हैं। पहला एलिमेंट में बच्चे क्या हुआ, इसको समझना जरूरी है, ये समझ में आया तो प्रोग्रामिंग हो पाएगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। क्या कह रहे हैं कि लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है, लार्जेस्ट नाम का ये एक वेरिएबल बना हुआ है। इस लार्जेस्ट वेरिएबल में L0 का बच्चे मतलब यहाँ पे है आपकी लिस्ट का पहला एलिमेंट, राइट, ठीक है। आपने बना दिया बच्चे उसको लार्जेस्ट, राइट। उसके बाद में क्या होगा, फॉर ईच आइटम इन दी लिस्ट एल, जितने भी आइटम आपकी लिस्ट में हैं, डू क्या करें, ये करें, ये क्या करना है, इफ द आइटम, जो आइटम आया इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, देन आप उस आइटम को लार्जेस्ट बना दीजिए। और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न लार्जेस्ट। आप इसको मैं रन करके देखते हैं क्या कह रहा है ये। मैं ऊपर वाली लिस्ट लेता हूँ, फिर आपकी समझ में आएगा। दिस इज 10, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 18, दिस इज 5। सपोज दिस इज योर एल, ठीक है। जो पहला वैल्यू है बच्चे ये L0 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ठीक है बच्चे। अब आप देखिए ये कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, जैसा हमने पहले की एल्गोरिथम में देखा था कि पहले एलिमेंट को आप लार्जेस्ट बना दीजिए, तो वही लिखा हुआ है लार्जेस्ट में L0 की वैल्यू आ जाए, तो लार्जेस्ट में क्या आ जाए, L0 की वैल्यू, मतलब कि लार्जेस्ट में 10 आ जाए, राइट, क्या आ जाए, 10 आ जाए, लार्जेस्ट मतलब 10, ठीक। फिर सारे एलिमेंट्स के लिए आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट एल। फॉर ईच आइटम मतलब जितने भी आइटम हैं यहाँ पे, चाहे वो ये हो, इनफैक्ट ये हो, पहला आइटम खुद भी हो, वो हो, या दूसरा आइटम हो, चाहे ये आइटम हो, जितने भी आइटम हैं लिस्ट में, उन सब के साथ कुछ काम किया जाएगा। और वो काम क्या है बच्चे, मैंने आपको पहले बताया था अभी, वो काम हम क्या कर रहे थे, सबके साथ कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, कंपेयर करते चले जाएंगे। और जैसे ही अगर हमको कंपैरिजन के टाइम में, जैसे 10 लार्जेस्ट हमको 13 मिला था, तुरंत हम 13 को लार्जेस्ट बना दिए थे। वही सेम हमने काम यहाँ पे करना है, लार्जेस्ट हमने 10 बना दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आइटम लिखा हुआ है वो आइटम का मतलब ईच आइटम है। सबसे पहले पहला वाला लेंगे, क्या 10 आइटम पहला वाला लिया, 10 की 10 आया, क्या 10 लार्जेस्ट, लार्जेस्ट में बच्चों 10 वैल्यू है, क्या 10 10 से बड़ा है, क्या 10 10 से बड़ा है। एक्चुअल में यहाँ पे हम पहली वैल्यू को चेक भी नहीं करेंगे, बिकॉज पहली वैल्यू क्या है आपकी, पहली वैल्यू तो बच्चे आपने लार्जेस्ट बनाई दी है, राइट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो आइटम आपका होगा फर्स्ट आइटम वो होगा 3, क्या 3 आपका
10 से बड़ा है? नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो ये नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फर्स्ट वाला पॉइंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। इनफैक्ट आप फिर से देखिएगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, आप समझिएगा बात को। वेट, अब समझिएगा, मान लिया पहला आइटम, अब फिर से समझिएगा, आपने लार्जेस्ट में वैल्यू 10 रखी हुई है और ईच आइटम के लिए कंपेयर किया जाएगा, हर वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, हर वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। और चाहे तो ये पहले वाले वैल्यू से, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम लिखा हुआ है तो कंपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। राइट, यहाँ पे हो सकता था आइटम -1, लेकिन कोई बात नहीं। मान लिया फर्स्ट आइटम आपका 10 है, 10 और लार्जेस्ट में वैल्यू भी 10 है। क्या 10 10 से बड़ा होता है? नहीं होता है। जब बच्चे ये फेल हो जाएगा तो देन में नहीं जाते। इफ और देन का मतलब क्या होता है? इफ अगर ऐसा हो तो देन, तो ऐसा करें। तो जब अगर ऐसा ही नहीं हुआ तो फिर आगे की तो बात ही खत्म है। तब क्या करेंगे? फॉर ईच आइटम करना है, मतलब पहले आइटम के लिए डन हो गया, अब दूसरा आइटम लाएंगे। अब दूसरा आइटम जब लाए तो आइटम की जगह यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे? 3। 3 इज ग्रेटर देन 10, अगेन नो। ठीक है, फिर हम यहाँ नहीं जाएंगे, फिर ये 3 के लिए भी कंप्लीट हो गया, फिर हम 2 के लिए कंपेयर करेंगे, क्या 2 इज ग्रेटर देन 10? नहीं, फिर हम यहाँ नहीं जाएंगे, फिर इसके लिए भी कंप्लीट हो गया। क्या 18? अब 18 आया बच्चे, देखिए क्या ध्यान से, जब 18 आया, आइटम आपका 18 हो गया, क्या 18 10 से बड़ा है? हाँ है। जब 18 10 से बड़ा है, मतलब कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो गया है, तो कैसा करिए? जो देन में लिखा है, देन में क्या लिखा है? ये लिखा है। अब आप क्या करिए, जो लार्जेस्ट है उसमें आइटम की वैल्यू डाल दीजिए। आइटम की वैल्यू कितनी थी बच्चे? 18 थी। तो लार्जेस्ट अब क्या हो गया? अब 10 नहीं रहा, इधर देखिए, इधर इधर देखिए, इधर लार्जेस्ट अब आपका 10 नहीं रहा, अब क्या रह गया? 18 हो गया। राइट, अब आगे जब कंपेयर होगी तो इस 10 की जगह 18 हो जाएगा। ये एलिमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू 5 है। अब देखेंगे बच्चे, क्या 5 आपका 18 से बड़ा है? नहीं है, तो इसके लिए भी फिर ये नहीं चलेगा। फिर आगे जाएगा, 5 के लिए आपका कंप्लीट हो गया, आगे कुछ बचा ही नहीं है, तब ये आपका क्या आएगा? रिटर्न लार्जेस्ट। रिटर्न लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब लार्जेस्ट में जो वैल्यू है, और करेंटली लार्जेस्ट में क्या वैल्यू है बच्चे? 18 है। तो 18 इज द लार्जेस्ट। आप देख लीजिए इस लिस्ट में 18 ही लार्जेस्ट नंबर है। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे फ्लो चार्ट की। जैसे ही एल्गोरिथम था आपका आपके पास, वैसे ही बच्चे आपके पास फ्लो चार्ट है। दोनों ही एक तरीके के टूल हैं विच आर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। राइट, ये जब फ्लो चार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में हम सी प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे। आप इसको इसी स्पीड में जल्द से जल्द सुन लीजिएगा और अपने दिमाग में बातों को रख लीजिएगा। बस उसमें बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है बिफोर स्टार्ट कोडिंग। राइट, दैट दिस इज द ओनली पर्पस व्हाई आई एम टेलिंग यू these stuffs, right? So what is the flow chart? What is the flow chart? The flow chart is the means of visually presenting the flow control through an information processing system, right? The operations performed within the system and the sequence in which they are performed, right? इसका आप मतलब समझिए क्या लिखा हुआ है, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। फ्लो चार्ट का मतलब है, एक तो बच्चे ये विजुअली प्रेजेंटिंग है, राइट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका? फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो भी फ्लो होंगे कंट्रोल का, कि अब ये होना है, अब इनपुट होना है, अब आउटपुट होगा, अब प्रोसेस होगा, कब प्रोसेस होगा, कब नहीं होगा, ये सारा का सारा फ्लो थ्रू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो भी प्रोसेसिंग सिस्टम हो, जो भी आपका कंप्यूटर हो या कोई और सिस्टम हो, जिसमें जो होना है, जिसमें आपका काम होना है, उसमें जो फ्लो होगा उसका कंट्रोल फ्लो चार्ट में दिखाया जाता है। और उसमें ऑपरेशंस दिखाए जाते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, कब कब इसको ब्रांच किया जाएगा, कब आगे बढ़ा जाएगा, जब कब राइट जाएंगे, कब लेफ्ट जाएंगे, मीन्स एवरी एंड ईच थिंग कहाँ? विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर, राइट, एंड द सीक्वेंस इन विच
दे आर परफॉर्म, और उसकी सीक्वेंस क्या होगी ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सीक्वेंस कोई भी हो। तो दिस इज जस्ट लाइक अ एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम का ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एक डायग्राम नुमा चीज है, एक डायग्राम है आपकी एल्गोरिथम का। सो इट इज अ ग्राफिक representation of how a process works, showing at a minimum the sequence of steps, minimum number of steps में आपका वर्क कैसे सॉल्व हो जाता है। तो दिस इज बेटर देन दिस इज थोड़ा लॉन्गर है, आप इसको ही याद रखिए कि दिस इज फ्लो चार्ट, तो भी आप काम आपका हो जाएगा। और नहीं तो आप इतना बोल सकते हैं, फ्लो चार्ट is a pictorial representation of algorithm, आप ये भी कह सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, फ्लो चार्ट्स आर जनरली ड्रॉन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग कंप्यूटर सोल्यूशन। जब भी आपको कंप्यूटर का सोल्यूशन बनाना है तो बहुत जल्दी स्टार्टिंग में ही आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा, अदरवाइज आप सोल्यूशन नहीं बना पाएंगे। सोल्यूशन मतलब प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो यू नीड ऑलवेज बिफोर डूइंग कोडिंग यू नीड टू draw your flow chart, right? Now there is the some guidelines for the drawing a flow chart. Flow charts are usually drawn using some standard symbols, like some standard symbols are what which are frequently required for flow charting. Many computers programs are shown below. यहाँ पे आप देखिए, ये पहला वाला है, दिस इज एक्चुअली ओवल टाइप स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा सर्किल जैसा ओवल जैसा होता है, या फिर ये जिसके कॉर्नर राउंडेड होते हैं ना बच्चे, वो भी आपका सेम बात होती है, राइट। ये राउंडेड कॉर्नर की बात आ रही है, ओवल ही होता है, वो स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम, जो आपके प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग शो करता है, राइट। और फिर आपकी बात आती है, ये आपका हो गया एक रेक्टेंगल बॉक्स। रेक्टेंगल क्या करता है, प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं इसको, कंप्यूटेशनल स्टेप्स और प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ प्रोग्राम, राइट। इसको हम सॉरी इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स, प्रोसेसिंग बॉक्स। इसको बोलते हैं बच्चे, कहाँ गया, इसको बोलते हैं अपना इनपुट आउटपुट बॉक्स। दोनों पर्पस के लिए बच्चे यूज किया जाता है। ये अपना ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ यहाँ लिख दिया मैंने इनपुट आउटपुट, ये यहाँ नहीं लिखना था बच्चे, दिस इज फॉर स्टार्ट एंड एंड। ये है आपका इनपुट एंड आउटपुट। दिस दिस पैरेललोग्राम इज यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट। यहाँ पे एक्चुअली मुझे लिखना था एंड आई राइट ओवर इनपुट एंड आउटपुट। मेक श्योर, ध्यान रखिएगा, ये आपका इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। दिस इज नॉट, दिस इज फॉर स्टार्ट एंड एंड, राइट। दिस इज ओवल, ओवल शेप, एंड दिस इज rectangle, and this is a parallelogram kind of, and this is your decision making or the decision box. This is your decision box. In decision box you decide what to do, right। आपकी यहाँ से ब्रांचेस बन जाती हैं, यहाँ ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा, ये अगर ब्रांच है तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे हमने प्रीवियस एल्गोरिथम में देखा था कि ऐसा लिखा हुआ है इफ का मतलब अगर ये वाली बात सच निकल जाए तो इधर चले जाइएगा, यस, अगर यस सही निकले तो इधर काम करिएगा, अगर ये बात गलत निकले तो इधर चले जाइएगा। ये इस तरीके की ब्रांचिंग का काम करता है आपके फ्लो चार्ट में। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, a set of useful standard flowchart symbols, writes rounded box, use it to represent, ये लिखा हुआ है जो आपने अभी पीछे डायग्राम देखा, to represent an event which occurs automatically, right। एंड दी जो राउंड एक्चुअली जो आपका क्या है, ये रेक्टेंगल और या फिर कोई बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स है, use it to represent an event which is controlled within the process, right, and typically this will be step or action which is taken, that's mean आप rectangle box को ये कह सकते हैं, this is a processing box, simply this is a processing box at the place where the processing is showing। ठीक है, आपको ये अच्छा लगे इतना याद रखिएगा, अदरवाइज आगे का याद रखना है तो वो याद रख सकते हैं। डायमंड क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर अ डिसीजन मेकिंग बॉक्स और डिसीजन बॉक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन पॉइंट इन द प्रोसेस में कहाँ पे डिसीजन लेना है बेटा। डायमंड हम प्रोसेस की जगह भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं, डिसाइड करना भी एक प्रोसेस का ही पार्ट है, राइट। सर्किल क्या, यूज इट टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट एट विच द फ्लो चार्ट कनेक्ट विद another circle another process, right। ये एक्चुअली अगर
हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप समझिए अगर ऐसा है ये तो प्रोसेस, यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग बॉक्स है और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इससे कि डबल प्रोसेस चल रही है, यहाँ P1 चल रहा है, यहाँ P2 चल रहा है। आप इतनी डिटेल में मत जाइए, आप इतना ही मानिए कि हमने ये वाले सिंबल्स देखे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये भी याद रखिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। एक राउंडेड बॉक्स भी होता है विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन इवेंट विच अकर्स ऑटोमेटिकली, कुछ काम अपने आप हो जाते हैं, उनके लिए होते हैं। ये बच्चों थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात है, इसमें दो आपकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, वो अगर आपको अच्छे लगे तो आप याद रखिएगा, अदरवाइज प्रीवियस वाले अच्छे हैं। एडवांटेजेस बच्चे क्या है इनके, इसका एडवांटेज है आपका ये आपके कम्युनिकेशन पर्पज से आता है, इफेक्टिव एनालिसिस करता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है या फिर इफिशिएंट कोडिंग करता है। कैसे करता है? कम्युनिकेशन का मतलब फ्लो चार्ट्स आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द सिस्टम। जो फ्लो आप अगर मतलब एक जगह से चलेंगे, आप पढ़ते चलेंगे, इधर गए इधर गए इधर गए, नाउ ये किया गया, नाउ ये किया गया, तो एक फ्लो बना रहता है बच्चे। जब फ्लो बनता है तो प्रॉब्लम कम होती है, इंफॉर्मेशन आसानी से कम्युनिकेट हो जाती है। तो दिस इज योर दी कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। एंड सेकेंड इज इफेक्टिव एनालिसिस, एनालाइज कर सकते हैं, प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज इन मोर इफेक्टिव वे, क्योंकि सब कुछ बड़ा लॉजिकल है, कनेक्टेड है, देन यू कैन एनालाइज इजीली, क्योंकि वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी है, सारी की सारी चीजें एक वन व्यू में आ जा रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज analyze effectively. And what is the proper documentation? Of course it is a complete and a proper documentation. Flow charts serve as a good program documentation. आप जो प्रोग्राम बनाने वाले बच्चे, उसका एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन का तरीका फ्लो चार्ट होता है। इसकी वजह से एफिशिएंट कोडिंग हो सकती है। फ्लो चार्ट्स एक्ट एज अ गाइड। अगर आपने फ्लो चार्ट नहीं बनाया ना, तो आपकी कोडिंग एफिशिएंट नहीं होगी, आप अच्छा नहीं लिखेंगे, राइट। आप हो सकता है प्रोग्राम बना लें, लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा, उसमें समय ज़्यादा लग रहा होगा लिखने में भी और रन होने में भी। तो फ्लो चार्ट्स एक्ट एज अ गाइड और अ ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज, दोनों साइन में आपको लिए ये ब्लूप्रिंट के लिए काम करना है। दैट्स मीन क्या बच्चों, अगर हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है, अगर मैं आपको C++ या C सिखाता हूँ बच्चे, तो आपको फ्लो चार्ट तो एटलीस्ट बनाना या पढ़ना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, राइट। अदरवाइज कोडिंग का क्या मतलब है। तो मैं चाहूँगा इससे पहले आप फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को बनाएं, एटलीस्ट जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उतना तो आप जरूर बनाएं, तभी बच्चे मज़ा आएगा आगे की प्रोग्रामिंग सीखने में। नाउ कम टू दी these are the two more actually advantages of the flow charts. This is what this is what this is what proper debugging. Flow charts help फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। डिबगिंग मतलब उसमें कोई एरर है तो उसको सॉल्व करने में मदद करता है। तो यही डिसएडवांटेज भी है, अगर एरर आ जाएगा तो पूरे का पूरा फ्लो चार्ट आपका बिगड़ जाएगा, राइट, दोबारा बनाना पड़ सकता है। इफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी अच्छा है, मेंटेनेंस ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोग्राम बिकम्स इजी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है बच्चे, पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है, आपको पता है कौन चीज़ कहाँ से क्या कनेक्ट है, आप इसी को एनालाइज करके बता देंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है या कहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है। मतलब अगर आपका पास कोई मॉल है, उसका ब्लूप्रिंट बना हुआ है, या स्कूल है उसका कोई ब्लूप्रिंट बना हुआ है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उसको देखते रहते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि हर जगह जाते जाएंगे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो एक आपका, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग की तरफ आपका डायरेक्शन ले जाना चाहता हूँ। हम अपनी प्रोग्रामिंग में वाइल लूप, फॉर लूप, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं बच्चे। उनमें से एक लूप है वाइल लूप, और लूप का मतलब होता है एक ही काम को बार बार कराते रहना जब तक कि आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो पूरा नहीं होता। लाइक इन अ प्रीवियस एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा, कहाँ दिखाऊंगा, एल्गोरिथम में दिखाऊंगा। ये है वो एल्गोरिथम बच्चे, यहाँ क्या लिखा हुआ था, फॉर, यहाँ देखिएगा फॉर ईच आइटम, मैंने कहा था फॉर ईच आइटम सेम काम करना है। फॉर ईच आइटम मतलब सारे आइटम्स के लिए
एक ही काम करना है। वो आइटम्स कौन से हैं? वो ये आइटम्स हैं बच्चे, कॉर्नर में देखिए, ये वो आइटम है। इन सब के लिए एक ही काम करना है, इसकी वैल्यू लेना है और लार्जेस्ट वैल्यू से कंपेयर करना है। मतलब एक ही काम बार बार करना है। इसी को बच्चों बोलते हैं लूप, मतलब कि लूप। इसमें हमने फॉर लूप लिखा था, यहाँ पे बच्चे वाइल लूप का फ्लो चार्ट बताया गया है कि वाइल लूप कैसे काम करता है। थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा नहीं जानेंगे आज, हल्का सा हम इसमें इंट्रोडक्शन लेते हैं ये कैसे काम करता है। फिर हम जब प्रोग्रामिंग में फाइल लूप देखेंगे तब आपको ये फ्लो चार्ट याद आएगा और आपको अच्छा लगेगा। ऊपर से कोई वैल्यू आती है, राइट, वो वैल्यू इस डिसीजन, ये क्या है, डिसीजन बॉक्स, इस डिसीजन बॉक्स में जाती है। वहाँ वो एक्सप्रेशन टेस्ट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। डिसीजन बॉक्स या तो आंसर ट्रू देता है या फॉल्स देता है। अगर आंसर फॉल्स मिलता है मतलब आप लूप से एग्जिट कर जाइए, राइट। और अगर आंसर आपको ट्रू मिलता है तो आप लूप में जो बॉडी में लिखा हुआ है, मतलब जो अभी मैंने एल्गोरिथम दिखाई थी इसमें टू स्टेटमेंट थे जिसमें लार्जेस्ट वैल्यू कंपेयर कर रहे थे, वो वाली लाइनें यहाँ लिखी हुई हैं। और जब वो पूरी हो जाए, जैसे एक आइटम का काम पूरा हो गया, तो हम वापस जाते थे, फिर हम टेस्ट करते थे एक्सप्रेशन। टेस्ट क्या करते थे उस वाली एल्गोरिथम में? हम ये देखते थे बच्चे, क्या अब लास्ट वैल्यू तो नहीं आ गई, लिस्ट खाली तो नहीं बची, ठीक। फिर यहाँ पे चेक हो जाएगा, दोबारा चेक होगा ट्रू है कि फॉल्स है। ये तब तक इसमें घूमता रहेगा जब तक ये ट्रू होती रहेंगी। जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, फेल कर जाएगा, तब ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। मतलब कि इसी लूप में ये घूमता रहेगा, एक ही चक्कर पे घूमता रहेगा। व्हेन इट्स फेल्स देन दिस इज एग्जिट, राइट। इन अ सेम मैनर दिस इज देयर इज फॉर लूप, इनिशियलाइज एक्सप्रेशंस, यहाँ पे वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज जाएंगी। फिर ये यहाँ पे टेस्ट होगा, टेस्ट होने पे या तो ट्रू आएगा या फिर आपका फॉल्स आएगा। फॉल्स आया तो एग्जिट, ट्रू आएगा तो बॉडी लूप की चलेगी, मतलब उस लूप में जो काम आपको बार बार करवाने वो लिखा होगा और एक पॉइंटर लगा होगा। सपोज आई इक्व टू 0 है मान लिया, या यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये वापस यहाँ जाएगा और इसकी वैल्यू, आपकी आई की वैल्यू जो 1 है, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक होगा, यहाँ आई की वैल्यू एक्चुअली चेक होगी, राइट। फिर आपका वैल्यू आएगा, इनिशियल वैल्यू एक बार फिर से देखिएगा, इनिशियल वैल्यू आई की वैल्यू 0 थी, फिर यहाँ पे चला आई की वैल्यू 1 हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट मतलब 0 से +1 कर दिया गया, राइट। अभी जब ये दोबारा सेकेंड टाइम बच्चों ये इधर आएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1 होगी। जब ये बॉडी लूप की चल गई, अगर ये ट्रू होता है तो आएगा, नहीं तो फॉल्स कर जाएगा। अगर ट्रू हुआ तो नीचे आया तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन +1, आई की वैल्यू बच्चे हो गई 2। ऐसे ही वो करता रहेगा जब तक आई की वैल्यू उस वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती जहां इसको फॉल्स कराना है। मतलब आई की वैल्यू फिक्स कर दी होगी कि भाई 10 टाइम तक रहनी चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा जबकि आई की वैल्यू 10 तक नहीं पहुंच जाती, राइट। इसको हम और डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि अगर समझ में नहीं आया, या तो इसको आप दोबारा सुन लीजिएगा, अदरवाइज जब मैं आपको प्रोग्रामिंग में लूप बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जब मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा तब तक समझना बच्चों थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरा अभी पर्पज ये है ये दिखाने का, एटलीस्ट आप अवेयर हो जाएं कि ऐसा कुछ होता है, राइट। सेम वाइज इफ स्टेटमेंट का भी होता है। इफ स्टेटमेंट आपने बहुत सारे लगाए हैं। यहाँ पे आता है इफ की बात, इफ अगर ट्रू होगा तो हमारा इधर का काम होगा, फॉल्स होगा तो इधर का काम होगा। ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ इफ जो यहाँ काम लिखा है, मतलब अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कुछ नहीं होगा, बाहर एग्जिट कर जाएगा, राइट। दिस इज द इफ स्टेटमेंट फ्लो चार्ट। इफ एल्स का मतलब क्या है, इफ अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा, राइट। मतलब इफ इज ट्रू तो ऐसा हो और फॉल्स हो तो ऐसा हो। पहले वाले बच्चों क्या था, अगर ट्रू हो तो ऐसा हो, लेकिन अगर फॉल्स हो तो बच्चों कुछ भी ना हो, ये वाली बात लिखी हुई है। ये भी हम प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट दोनों ही, इफ एल्स और इफ दोनों ही हम आपको सी में दिखाएंगे। देयर इज अ फ्लो चार्ट एग्जाम्पल फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। 5 नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, इनको हमें सम करना है। स्टार्ट एज फॉर द ओवल, एरो आपका डिनोट करता है बेटा कनेक्टिविटी, दो सिंबल्स का। S0 इज व्हाट, sorry, S0 is what, is this is the initial value, right। S0 S is initial value किसकी है बच्चे, S का मतलब यहाँ पे सम से है, सम में वैल्यू 0 है अभी, I इक्वस टू 1, राइट। ये आपकी आ गई क्या, I इक्वस टू 1, फर्स्ट वैल्यू आ गई। S में क्या है बच्चे, 0 था अभी, I में क्या है 1,
जीरो प्लस वन कितना हुआ, वन। अभी एस में कितना आ गया बच्चे, वन। ठीक है, आगे गए, आई प्लस वन कर दिया गया, आई में वैल्यू है बच्चे वन, और प्लस वन कर दिया गया तो कितना हो गया, टू। मतलब आई की वैल्यू हो गई टू। राइट, अब नीचे आए, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ या इज, जो भी आप चाहे लिख लें, इज आई इज ग्रेटर देन एस। आई का मतलब बच्चे यहाँ पे है टू से, टू क्या वन से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, तो किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। राइट, इधर जाने के बाद ये आया, फिर से यहाँ आया। राइट, अभी आपकी क्या है, एस की वैल्यू देखिए वन है, एस की वैल्यू वन है, बिल्कुल है वन। वन प्लस वन हुआ तो कितनी हो गई, टू, मतलब अब एस की वैल्यू हो गई टू। राइट, आगे यहाँ आए, आई की वैल्यू आपकी क्या है, वन है, आई की वैल्यू आपकी वन है, वन प्लस वन आपका टू ही रहा। राइट, अगेन टू इज ग्रेटर देन टू, अगेन टू इज ग्रेटर देन टू, नो, नो दिस इज रॉन्ग। In this flow chart, this flow chart is for first five natural numbers, that is why 1 2 3 4 5. In this program what is happening, s equals to 0 and I equals to 1, this is sum को मैंने मान लिया 1। right, okay, and आई बिकम टू। ओके, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे वन नहीं होगा ना, आई इक्वस टू टू है। ओके ओके ओके, आई फॉरगेट दिस, आई इक्वस टू टू है, सो टू प्लस वन, जब ये एस इक्वस टू टू हो गया, फिर यहाँ आए, आई की जगह बच्चे टू लिखा, टू प्लस वन होता है थ्री, टू की जगह बच्चे हो गया थ्री। अब यहाँ पे फिर चेक हो गया, आई एम सॉरी, थ्री कंपेयरिंग विद दी टू, क्या थ्री टू से बड़ा है, बिल्कुल है, वापस यहाँ जाएगा। राइट, अब फिर से क्या है, एस की वैल्यू बच्चे टू है, तो टू प्लस आई की वैल्यू क्या है, टू प्लस आई की वैल्यू बच्चों क्या है, थ्री है, थ्री, थ्री प्लस फाइव, इन अ सेम मैनर ये लूप चलता रहेगा बच्चे। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, अगर आपको समझ नहीं आया मैं एक बार फिर से बताता हूँ। दिस एस इज, फिर से समझिएगा, दिस एस इज सम विच इज जीरो। ठीक है, दिस इज इनिशियल वैल्यू आई इक्वस टू वन, इट्स ओके। आगे आए, यहाँ लिखा हुआ है एस इक्वस टू एस प्लस आई, ये मैं बाहर लिख रहा हूँ, वहाँ पे क्लियरली दिखता नहीं है इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूँ। एस इक्वस टू एस प्लस आई, एस की वैल्यू बच्चों ऊपर से आई है जीरो, ठीक है, जीरो, आई की वैल्यू आई है बच्चे वन, तो ये कितना हो गया बच्चे, वन। राइट, आगे गए, आई, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई का मतलब है आई प्लस वन, आई की वैल्यू बच्चों ऊपर से आई है वन, वन प्लस वन कितना होता है, टू होता है। अब यहाँ आए, क्या आई इज ग्रेटर देन एस, आई आपका बच्चे है अभी टू, एस है आपका वन, क्या टू वन से बड़ा है, यस है, तो इधर गए, तो ये एक्चुअली ट्रू का है या यस का है, ये आपका नो का है। राइट, इधर हम गए यस में, ऊपर गए, दोबारा आते आते कहाँ, फिर इसी बॉक्स में आ गए अगेन, अभी फिर से यही काम किया जाएगा। अभी पहले वाले केस में एस की वैल्यू जीरो थी, अभी एस की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई है, वन हो गई है, एस की वैल्यू हो गई है वन, और आई की वैल्यू हो गई है आपकी भैया, आई की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ से देखिए कितनी हो गई, आई की वैल्यू टू गई थी ना, यहाँ पे टू कंपेयर हुआ था, तो आई की वैल्यू भी टू हो गई थी, तो s plus 1, this is what, 2, so 2 plus 1 is 3, now 1 become your 3, right, 1 become 3, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इक्वल टू, i आपका 2 था, 2 प्लस वन इक्वल टू वॉट, 3 हो जाएगा। राइट, अब फिर आपके यहाँ जाएंगे तो क्या, 3, again there is some problem, 2 plus 1 3, right, okay, 1, 1 plus 2 3, in this something is wrong in this, something is missing in this, in this in this you know, एक मिनट,
something is missing in this. Don't worry, we will create the program for that. I'm something is missing. I don't know what's the problem in this. I'm something is missing in this. You may find this what's the problem in this. Okay, take one time more. This is very simple actually. We are going to try what, we are going to add these numbers 1 2 3 4 + 5. हमने सिर्फ ये काम करना है, राइट? हमने एक वेरिएबल ले लिया है एस नाम का, जिसमें रख दी वैल्यू इनिशियल 0, राइट? एक इंक्रीमेंट आई वैल्यू वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने ले दिया 1, राइट? फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 1, राइट? और क्या करा बच्चे, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ जो एस है, एस की जगह हमने 0 जो इनिशियल वैल्यू आई, पहले वैल्यू में हमने जोड़ दिया 1, जो आपका सम बन गया आपका बच्चे 1, राइट? जब ये सम बन गया 1, अब आई की वैल्यू आपकी ऊपर से आई थी 1, 1 + 1 बन गई बच्चा आई की वैल्यू 2, राइट? अब आप देखिए क्या 2 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। आप वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू बच्चे हो चुकी है आपकी 2, राइट? तो और एस की वैल्यू है आपकी 1, मतलब कि अब जो कैलकुलेशन होने वाला है 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3, वो आपका 3 आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है? जब 3 यहाँ पे आ गया, अब अगेन आई इक्वल टू आई + 1 होने वाला है, और आई की वैल्यू आपकी आई है, यही पे कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है बार बार, नहीं? This is s equals to s plus 1. I just found out the what's the problem. 2 + 1. 1 + 2 is 3. It's okay. Oh my God. Oh my God. This is actually this is actually my system is getting problem. This is actually no, and this is actually yes. Right? This is actually no, and this is actually everything is all right. I'm doing a big mistake over there. Okay, I just write here yes and there no. That's why this algorithm is not flowing. So this is the also in the flow chart. If flow is not correct, then you cannot reach your answer, right? Again, this is 2, and 2 + 1 become the I value is 3, right? Now check, is 3 is greater than 3? 3 is greater than 3, yes or no? No, 3 is not greater than 3. Why? Because 3 is equals to 3, right? So then you go in this direction again. Now s equals to s plus I की वैल्यू बच्चे हो चुकी है 3, और s की वैल्यू थी पहले से आपकी 3, तो 3 + 3 हो जाने वाला है विच इज इक्वल टू 6, एंड i की वैल्यू i + 1 हो जाती है। i की वैल्यू बच्चे अभी आई थी आपकी 3, और 3 + 1 हो जाएगी 4, ठीक है? नाउ सॉरी, अगेन यहाँ पे कंपेयर होगा, क्या 4 मतलब करंट वैल्यू ऑफ i, क्या 4 इज ग्रेटर देन s मतलब 6, क्या 4 6 से बड़ा है? नहीं, 4 6 से बड़ा नहीं है। देन इट गो इन दैट डायरेक्शन, राइट? इन दैट डायरेक्शन ये जाएगा। फिर अगेन सम की वैल्यू अभी करंटली कितनी है? 6 है, तो 6 प्लस आई की करंट वैल्यू बच्चों कितनी है? 4 है। 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10 आएगा। अगेन नीचे आएंगे, फिर आई की वैल्यू देखेंगे, आई की वैल्यू अभी 4 है। 4 + 1 क्या हो जाएगा बच्चे? 5 हो जाएगी। 4 हट के 5 हो जाएगी। फिर यहाँ फिर नीचे आएंगे, इस डिसीजन बॉक्स में चेक होगा क्या 5 10 से बड़ा है? 5 10 से बड़ा नहीं है, नो। अगेन इधर जाएंगे, 5 10 से बड़ा नहीं है, अगेन इधर जाएंगे, राइट? फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे s इक्वल टू s प्लस आई। अब अगेन आपकी i की वैल्यू है क्या? i की वैल्यू है 5, राइट? एंड दी सम इज योर 6, so 6 + 5, 6 + 5 become your 11, right? This become your 11. I'm doing right, I suppose. Okay, then next is what? I become your, this is your I 5 + 1 become your 6.
this become your 6, right? I become your I plus 1, of course 6, right? Then फिर 6 is greater than 11. Yes, 6 is not greater than 11. Again जाएगा बच्चे, फिर आप क्या करेंगे? 11, 11 plus 6 आपका हो जाएगा कितना? 17. Again we are doing wrong, ठीक? But in a same manner you will find the actual solution of this. I think suppose something I am missing in this, you can find out this, otherwise definitely I will give you the correct way. In this flow chart I think something is problem which is I am missing, right? Don't worry, you go through with this and find the current flow of this. I don't know what is I am missing in this, you can find out this, don't worry. Okay, right? I just remove this all ink and then you will find out what is the answer of this. Now the flow chart of your next, I guess this will be make you clear about the flow chart. Maybe this is correct. Okay, so there is हमने करना क्या, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एडिशन करना है, पहले 50 नंबर का नेचुरल नंबर्स का एडिशन करना है, राइट? सो क्या होगा, स्टार्ट सम इक्वल्स टू 0, अगेन वही ले रखा है, सम 0 है, एन इनिशियल नंबर 0 है, राइट? उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे n+1 हम अपने नेचुरल नंबर को 1 से बढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसको सम में जोड़ देते हैं। सम को जोड़ने के बाद ये देखते हैं कि क्या n इक्वल्स टू 50 है, इज n इज इक्वल्स टू 50, n का मतलब ये वाली जो वैल्यू है दैट इज 50, ठीक है। बच्चे ये एस नहीं होगा, नाउ आई फाइंड आउट दिस इज 5, ठीक है, 5 होगा। ओके, देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं बहुत देर से इसको देखने में लगा था। ये i इज ग्रेटर देन 5 होगा बिकॉज 5 नेचुरल नंबर के लिए ले रहे हैं, हर एक i के लिए 1 होगा, ठीक है, फिर आपका 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। 5 नंबर्स 5 टाइम्स ये लूप चल जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, फिर i की वैल्यू जब 6 हो जाएगी बच्चे तब ये फेल कर जाएगा, राइट? दिस इज एस, ये नहीं है, मैं इसी वजह से कंफ्यूज हो रहा था। आई कंपेयर आई विद एस, क्योंकि जब फ्लो चार्ट रीड करते हैं बच्चा उसमें कोई दिमाग नहीं लगाते, जस्ट रीड करते हैं, दैट्स वाई आई एम स्टक विद दिस, राइट? दिस इज 5, आई इज ग्रेटर देन 5। अगर आई 5 से बड़ा हो गया, आई क्या है, आई ये नंबर्स हैं, पहला नंबर, फिर सेकेंड टाइम यही आई हो जाएगा, थर्ड टाइम ये आई हो जाएगा, फोर्थ टाइम आई हो जाएगा, फिर फिफ्थ टाइम आई हो जाएगा, राइट? तो ये आई है। जब आई 5 से बड़ा हो गया, मतलब कि आपको याद होगा, अभी मैंने कैलकुलेट किया था, जब ये 6 पे पहुंच जाएगा बच्चे, जब ये 6 पे पहुंच जाएगा तब ये क्या करेगा, इधर चला जाएगा, यस, राइट? आई इज ग्रेटर देन 5 मतलब 6 हो गया, तब इधर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा एस की सम। ओ माई गॉड, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंटिंग मिस्टेक आई एम डूइंग so wrong, right? In now this actually clear diagram which is clear about my the logic, what is the logic in this flow chart. That's great. Okay, so actually this thing is showing also a disadvantage of flow chart. If a single letter mistake is not acceptable in the flow chart, it's makes your flow chart completely wrong. Like me, I do this in a very wrong way, right? So similarly sum equals to sum plus n is n equals to 50। अगर ये n equals to 50 हो गया तो आपका प्रिंट सम कर दिया जाएगा, अदरवाइज ये नो पे घूमता रहेगा, राइट? क्यों? n equals to 0 है, यहाँ पे आएगा n+1 होगा, फिर सम इक्वल टू 0 है, n की वैल्यू जुड़ जाएगी, और यहाँ पे कंपेयर होगा, क्या n 50 के बराबर तो नहीं है, नहीं है, तो n की वैल्यू फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4, फिर 49, फिर 50, फिर अगर 50 हो गई तो बाहर हो जाए क्योंकि हमने सब जोड़ लिया। ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, वैल्यूज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, 1 by 1 इन द सेम वे। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या करेंगे, दो नंबर रीड करें ए एंड बी, पैरेललोग्राम दे देखिए इनपुट आउटपुट बॉक्स से। हमने यहाँ देखा क्या ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा यस कहते हैं तो प्रिंट कर दो ए, अगर नो कहते हैं तो प्रिंट कर दो बी, और दोनों से हमने निकाला एंड,
राइट, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। इसका प्रोग्राम भी बनाएंगे हम, राइट। इन अ सेम मैनर बच्चा, यहाँ पे देयर आर फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स। आपने तीन नंबर रीड करे, सबसे पहले काम क्या किया, दो नंबर्स के बीच में कंपेयर कर लिया, क्या ए बड़ा कि बी बड़ा। अगर ये बी ए बड़ा है बी से, तो चेक कर लो क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए सी से भी बड़ा हो गया तो भैया ए ही सबसे बड़ा है, राइट, और नहीं तो सी सबसे बड़ा है, ठीक है। इन द सेम वे ए अगर बी से बड़ा नहीं है तो बी ए से बड़ा है, दैट्स मीन। तो अगर चेक कर लो कि बी अगर सी से भी बड़ा है, यस, तो प्रिंट कर दो बी बड़ा है, अदरवाइज प्रिंट कर दो सी बड़ा है, और सारा कुछ एंड से आप जोड़ दीजिए, राइट। So at last, this is not the beginning, this is not the end, but this is the beginning of your C programming, right? This is your starting of your start of coding, coding in C plus plus or programming in सी प्लस प्लस। ये बच्चों स्टार्टिंग है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, राइट, ऑफ योर सी प्रोग्रामिंग, जो हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो लिखा है एटलीस्ट वो मैं आपको बता देता हूँ। सी प्लस प्लस इज अ मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग created by Bajaj Strostrup 1983 at Bell Labs। सी भी वही हुई थी। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, उसी का एक्सटेंशन है, दैट्स वाई हम प्लस प्लस कहते हैं। एंड द प्रोग्राम्स रिटन इन द सी लैंग्वेज कैन रन इन सी प्लस प्लस कंपाइलर। ऑफकोर्स सी में लिखे हुए सारे के सारे प्रोग्राम सी प्लस प्लस कंपाइलर में रन होते हैं बच्चे। और तो और जितने भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स हैं उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको सी प्रोग्रामिंग की मिलती हैं। बस इसमें जो एडिशन है बच्चों वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जो भी है कैसा है, कैसे हम कोड करते हैं अपने इन्हीं फ्लो चार्ट के कोड्स को, छोटे छोटे कोड्स फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम को हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, उनको रन करेंगे और उनके रिजल्ट्स को देखेंगे कि व्हाट हैपेंस, राइट। फिर आप अपने आप से भी कोड बना सकेंगे बच्चे, ठीक है। तब तक के लिए अपना आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग with the Unacademy. So let's crack CBSE 8th with us, and keep commenting on the YouTube, and press bell icon here, and you use this live MP code here for getting 10% extra discount on the subscription. Then join Telegram group for latest updates on your upcoming videos. तब तक के लिए thank you and take care.